far from a saint. They call me a bad man, that's a fucking good thing. Mama said swing back when another man swings, so I make my mama proud and they make your heads ring. Attention, please. Very good afternoon. Very sorry for the delay. Just because of some reasons, we are starting late. So, first of all, welcome all. First, I would like to welcome our Managing Director, Amol Kamble sir, and CEO and founder of Amol Design Studio, Mansi Vadekar ma'am, CEO of MPLA Corporation, Reshma ma'am, CEO of Watchbox, Wabasol and Wabastar, Aarti ma'am, and all present over here. So I would like to grab your attention. Today we are here not just to celebrate this month, but what we have done, what we have achieved in last month. Today we are going to discuss about this. Our main agenda to bring you here is to make you ensure that you have to think out of the box, right? That's space मध्ये बसून maybe काय काय ways तुमची thinking खूप narrow होते, right? To make our vision broader and to make our vision for the long term. For that reason, we are conducting a monthly meeting at very lavish places, right? So hope this meeting will be have a great impact on yourself. So हर महीने एक नई अपॉर्चुनिटी आती है, लाइक वो अपॉर्चुनिटी के साथ आपको एक नया चैलेंजेस भी आते हैं, राइट? हाउ मेनी ऑफ यूर थिंकिंग कि लास्ट मंथ जो हमारा मीटिंग हुआ था उससे लाइक कुछ इम्पैक्ट हुआ, लाइक हाउ मेनी परसेंट पीपल थिंक कि लास्ट मंथ जो मीटिंग हुआ था हमारा उसमें से स्लाइटली चेंजेस, नॉट ड्रास्टिक चेंजेस बट स्लाइटली चेंजेस कुछ हुए? हाउ मेनी पर्सन कैन एग्री लाइक देयर इज स्लाइटली चेंजेस? Okay, so clap for yourself only, because this all credit goes to you only. Management responsibility is to make sure that everything is going smoothly, but to take that thing very seriously is up to you only, and you have done very good. Talking about targets, achievements that going to be happen in every month, right? वो तो आपका पीछा छोड़ने वाला ही नहीं है, but आपने जो contribution किया है, that is you have not give up. I have heard something like कुछ rumors आए मेरे कि ये टारगेट अचीव करने में बहुत लोगों की जान चली गई थी. मुझे ऐसे रिव्यूज भी आए हैं, मैं 2 दिन बचे, मेरे को नींद नहीं आ रही, टारगेट कंप्लीट करना है, नींद नहीं आ रही है मेरे को, टारगेट कंप्लीट करना है, इंसेंटिव लेना है. That hunger I have seen in everybody's eyes. I hope this will continue every month, every year, and the level of Amua Corporation, like each and every person is brand ambassador of Amua Corporation. We are here not as a department, not as an individual person. We are here as a Amua Corporation. We are at management team is presenting as a Amua Corporation. Here, make sure you should create a great bonding with your colleagues. अभी हो गया, अभी ऑफिस के बाहर आ रहे हैं, अभी कोई competition नहीं है. So make sure कि this meeting should be impactful. यहाँ से बाहर जाने के बाद there should be a different mindset of each and everyone's, right? Now I would like to call our dear employees to share their experience, their journey, what challenges they faced in their work, and how they are trying to overcome, and how their teams are supporting them, right? So first I would like to call Shrestha Dalan to share his experience, to share his journey within 1 month, what challenges he's faced, and how he's trying to overcome in it. So welcome Shrestha. नमस्कार एवरीवन. सबसे पहले मैं सर का थैंक यू बोलना चाहूंगा इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि सर ने मुझे यहाँ खड़े होने का, बोलने का मौका दिया. और जो भी उन्होंने अभी मुझे 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है और अभी मैंने आपको अपना नाम भी नहीं बताया, उससे पहले ठीक है. तो सबसे पहले अभी मुझे 1 महीना भी यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है, उसमें भी मैंने कितना कुछ सीखा, क्या मेरे सामने चैलेंजेस आए और कैसे मैंने सभी से जो भी चीजें सीखी है वो मैं सब थोड़ा थोड़ा करके आपको बताऊंगा. और मैं आगे के लिए क्या सोचता हूँ वो भी मैं आज आपके सामने यहाँ पे रखूंगा.
तो फिर से सर को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, अमोल सर को, जो बहुत फ्रेंडली है, बहुत गाइड करते हैं सभी को। मुझे भी उन्होंने किया, मतलब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू से हम लोग शुरू करते हैं। ओके, जब मेरा इंटरव्यू था सर के साथ तो लगभग 40 से 45 मिनट की हमारी कन्वर्सेशन रही होगी। और सर ने मतलब जैसे मेरे से पूछा नहीं, मुझे बताया नहीं बताया कि कैसे रहेगा। उन्होंने बस मेरे से मेरा नाम पूछा और बस उसके बाद वो बोलते कि मैं सुनता गया। फिर उन्होंने फीडबैक लिया और आगे के लिए मुझे वहीं पे तैयार उन्होंने कर दिया कि आपको आगे कैसे करना है, क्या आपको रहने वाला है। सर्विसेज के बारे में हमारी बातें हुई। पहले ऐसा था कि आगे कैसे रहना है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कैसा है। तो वो पहला इंप्रेशन ही ऐसा था कि मुझे, और सबसे बड़ी बात ये थी कि सर ने जो पॉइंट ऐड किया वो मैं फिर से आप सभी को बताना चाहूंगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे यहाँ पे बांधे हुए अभी तक के लिए। और अगर मैं आगे के लिए सोचता हूँ ना, तो उसी वजह से सोचता हूँ। वो चीज है रेवोल्यूशन। देखिए, अभी पहले जब सब लोग ट्रेडिशनली बिजनेस करते थे, शॉप से कस्टमर जाता था शॉप पे, वहां पे खरीदता था, चीजें होती थी। उसके बाद से एकदम से इंटरनेट का युग आ गया, ठीक है। और बहुत सारे लोग उस पर ट्रांजिशन कर ही नहीं पाए, तो आज भी उनकी शॉप्स खाली पड़ी हुई है। सर ने एग्जांपल भी दिया, तो वो सिर्फ चीनी बेच रहे हैं लाला लोग। तो इसके लिए हम लोग जो कर रहे हैं ना, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बेच रहे हैं अभी किसी को, हम दे रहे हैं सॉल्यूशंस। हम उस ट्रांजिशन का हिस्सा बन रहे हैं कि लोगों को एआई के माध्यम से समाज कैसे वो अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, कैसे वो लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ही फ्यूचर है और हम इसको लीड कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, तो कहीं ना कहीं हमारा कंट्रीब्यूशन भी रहेगा उस चीज में। अगर इंडिया की इकोनॉमी पे हम भी उतना ही इम्पैक्ट डाल रहे हैं, उन लोगों को उतना सेल करने में, कस्टमर्स को लाने में। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, इसका इम्पैक्ट इतना है कि देखिए अभी जितने बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, सभी लोग उधर से शॉपिंग करते हैं, ठीक है। और जो हमारे आसपास की दुकानें हैं, जो शोरूम्स हैं, शॉप्स हैं, बिजनेसेस हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है, उनको हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि वो इतने लंबे समय से कोरोना के पीरियड से भी वो निकल के आए और अभी भी वो स्ट्रगल में है। तो उनको कैसे उनकी कस्टमर एंगेजमेंट बढ़े, कैसे उनको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर मिले, हम उसमें भी हेल्प कर रहे हैं। तो हम केवल सिर्फ अपना फायदा नहीं, हम तो समाज का फायदा भी कर रहे हैं, ठीक है। और एक चीज और, मैंने सही बताऊं, अभी इस स्पीच के लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया था। सुबह मैंने 9 बजे मैम का मैसेज देखा कि मुझे सबसे पहले बोलना है, तो फिर मैंने सोचा पेपर कुछ नहीं करते, सीधा जाके जो रहेगा सर को देखूंगा और बस बोलना शुरू कर दूं। तो और इसके बाद अभी ऐसा है, देखिए सबसे पहले फिर से जो हमारे मैनेजर्स हैं, टीम लीडर्स हैं, जितने भी मेरे कलीग्स हैं, मैं उन सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगा। आप सभी की पॉजिटिविटी के लिए मैंने आप सभी को ऑब्जर्व किया है। जितने भी आप लोग डिपार्टमेंट है, हो सकता है मुझे एक दो के नाम भी याद नहीं रहे, बट मैंने सबको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया कि आप कैसे काम करते हैं, आप क्या काम करते हैं। भले मैं एक वीडियो हूँ यहाँ पे, बट मैंने टेक्निकल टीम को भी देखा कि वो क्या काम करते हैं, और बाकी सब की आपस में उनके कैसे कन्वर्सेशन रहते हैं, कितना वो स्ट्रेस लेते हैं, कैसे वो चीजों को हैंडल करते हैं, टारगेट करना। अगर जैसे मेरा अगर फ्री टाइम होता है, तो मैं अपनी चेयर घुमा के दूसरों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता हूँ कि हाँ वो कैसा कर रहे हैं, क्योंकि लगता है कि शायद कुछ और अपॉर्चुनिटी भी रहेगी। कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो ऐसा, सर तो सीईओ है हमारे कंपनी के, बट कभी मुझे ऐसा फील नहीं होता। वो जैसा रहता है ना, देख के थोड़ा डर लगता है कि सर आ रहे तो पैंट शर्ट ठीक कर लेते हैं, काम पे ध्यान देते हैं, है ना, सिस्टम चलाने लगते हैं। ऐसा रहता है कि सर आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे काम छोड़ के फिर मुड़ जाते हैं, हेलो सर, ऐसा। वो आप तभी ने फेस किया होगा कंपनी में। ऐसा ही आरती मैम के साथ भी रहता है, कुछ भी इशू आता है, हम लोग को प्रॉब्लम होती है, तो हम अपने टीम लीड से करते हैं। करिश्मा मैम मुझे सब कुछ मतलब हेल्प करते हैं, बताते हैं कैसे करना है, क्या करना है। कभी हम दोनों को कुछ मिलके प्रॉब्लम आता है तो हम आती है उनके पास जाते हैं, ऐसा। बाकी रेगुलर मीटिंग हमारी होती है, जिसमें बहुत कुछ सर से सीखते हैं। हर वीक वो मीटिंग ऐसी होती है जिसमें हमने पहले क्या किया उसका हम एनालाइज करते हैं, और आगे हमें क्या करना है, क्या प्लान बनाना है, कैसे करना है। वो मीटिंग काफी लंबी चलती है। जब फर्स्ट मीटिंग तो मुझे लगा कि 1 घंटे की मीटिंग में हमने क्या किया, मतलब पर फिर हमने, क्योंकि मैं नोट्स बनाता हूँ, तो जब भी देखा तो पता चला कि सर ने हमें इस बहाने एक प्लान भी दे दिया, कैसे अप्रोच करना है, क्या हमारी कमियां रही हैं, और हमें आगे उनको बेहतर कैसे बनाना है, वो भी हम वहीं पे सीख जाते हैं। तो वो 1 घंटे की मीटिंग हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है ना। और अभी इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं कि मेरे लिए मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहा, ठीक है। तो सभी के साथ देखिए एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैंने सबसे पहले टेक्नोलॉजी सीखी है कि हम लोग कैसे काम करते हैं, क्या हमारा काम है, जो हमारी सर्विसेज है, वो एक नया था। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए मैं काम ऐसा बीडी करता हूँ, ठीक है, हम लोग सॉफ्टवेयर सेल करते हैं, बेसिकली सोल्यूशन सेल करते हैं, ठीक है। बट जो बिजनेसेस है, अगर हम उनको नहीं समझेंगे तो हम उनसे कैसे इंटरेक्ट करेंगे। अभी हमको कैसे करना रहता है, जैसे हमको ज्वेलरी को भी टारगेट करना है, ओके, हमको क्लोथिंग को, फैशन को, रियल एस्टेट को, एजुकेशन को, सभी को हमको टारगेट करना है। अब उनसे इंटरेक्ट करने के लिए उनका कैसा डेली रूटीन होता है, या फिर वो कैसे लोगों से, क्या उनके प्रॉब्लम्स है, क्या उनके पेन पॉइंट्स है। तो जैसे एजुकेशन को टारगेट करना, तो पूरा समझना पड़ता है उनका डेली कैसे एक्टिविटी रहता है, कहाँ उनको प्रॉब्लम आती है। इस बहाने वो भी सीख जाते हैं।
कि कैसा एजुकेशन वालों को क्या दिक्कत है अभी मुझे सब पता है, ठीक है। रियल एस्टेट वालों को क्या प्रॉब्लम है वो मुझे अभी सभी पता है। अभी अगर मैं घर खरीदने जाऊंगा तो मुझे बहुत हेल्प होगी इस चीज के लिए। बच्चों के एडमिशन के लिए अभी तो नहीं हुई है, बट बच्चों के एडमिशन में जाऊंगा तो मैं उनको उधर बोलूंगा आपकी इंक्वायरी बहुत लेट है, ये लो सरकार हमारे कॉल करो एडमिशन हो जाएगा। बहुत कुछ सीखा है इसमें। और इसके बाद अभी उनसे इंटरेक्ट करना बहुत इजी हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। अभी किसी शॉप पे अगर शॉपिंग करने जाता हूं तो पता नहीं क्यों 5 मिनट की कन्वर्सेशन हो जाती है। पता नहीं कैसे बट हो जाता है। और काफी कुछ सीख रहा हूँ अभी भी धीरे धीरे। और यहाँ पे केवल ऐसा नहीं कि मैं टेक्नोलॉजी के बारे में या बिजनेस के बारे में सीख रहा हूँ, अभी मैं मराठी में भी काम कर रहा हूँ। अभी मराठी सीख रहा हूँ धीरे धीरे, थोड़ा सा मुझे आया नहीं है। अभी थोड़ा कोशिश करूंगा अगर बोलने की मेरे से हो पाए तो, ऐसा कुछ सोचा नहीं है। बट देखो और दूसरा कैसा डाइवर्सिटी भी इधर बहुत है। क्योंकि देखिए अभी हमारे साथ जो काम करती थी अमृता मैम, वो मलयालम थी, ओके, वो केरला से थी। तो उनके साथ मैंने बात की, थोड़ा बहुत कुछ उन्होंने मुझे अपनी चीजों के बारे में बताया तो मैं उनको भी सीखा। तो जो डाइवर्सिटी है ना, फिर उसके बाद हमारी कृष्णा मैम, कृष्णा गिरी मैम है, वो आंध्रा से है, ठीक है। बाकी सब लोग महाराष्ट्र है, मैं दिल्ली से, कोई यूपी से, ऐसा सभी लोग के साथ मिलके वो जो डाइवर्सिटी देखने मिलती है ना, वो भी बहुत अलग है, जो कि शायद बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन में रहती है। अगर आप नोएडा काम करने जाओगे तो बेसिकली आपको वेस्ट यूपी वही सब लोग मिलेंगे। बट यहाँ पे सब लोग बहुत अलग मिलते हैं, सबका कल्चर अलग है, सबकी चीजें अलग है। और मैंने बहुत सारी बहुत कुछ सीखा है आप लोगों से सच में। और आगे भी मेरी जर्नी यूं ही चलने वाली है अभी के साथ में। बहुत कुछ मुझे सीखना है, बहुत कुछ मुझे करना है। और पता है, अभी यहाँ से बोल के जब जाऊंगा ना मैं, तो उधर बैठ के सोचूंगा ये भी रह गया बोलना था, वो भी रह गया, ये भी रह गया। तो उसके लिए हम नेक्स्ट मीटिंग में जब भी हमारी नेक्स्ट मंथ होगी तो उसके लिए प्रिपेयर करके आऊंगा, अच्छे से बोलूंगा। और आप सभी को सच में बहुत थैंक यू। और सर को भी थैंक यू, अमोल सर, थैंक यू शारिका मैम, थैंक यू आरती मैम, थैंक यू करिश्मा मैम, और बाकी जितने भी मेरे कलीग्स हैं, टीम लीडर्स हैं, सभी को मैं थैंक यू बोलता हूँ, प्रतीक्षा मैम को भी। ओके, और एक कोट के साथ खत्म करता हूँ, थांबे थांबे तले साचे। ओके, मी मराठी शिकतोय पण झाला कोई मिस्टेक करा तर माफ करा मला। ओके, थँक्यू थँक्यू सर। ठीक आहे, जेनझी बोलून खूप जास्त चण्याच्या झाडावर चढवलं मला. बट खरं सांगायला गेलं तर मी अमुआत जॉईन नव्हते करणार. आरती मॅम आणि नीरजा मॅमला सुद्धा माहितीये मी रिजेक्ट केली ते ऑफर. बट काय म्हणत आलं मला पण नाही माहिती. मी जॉईन केलं. स्टार्टिंगला खूप म्हणजे अशी 2 हफ्ते मी चेअरवरती फक्त गोल गोल फिरत होते आणि झोपा काढल्यात. आरती मॅम मागून येऊन मला असे मारायचे, काय चाललंय तुझं. मी तरी झोपायची त्यांच्या समोर. मग झालं 2 हफ्त्यानंतर फोन लॅपटॉप दिलाय, चालू केलं. डिमोटिवेट मी खरं सांगते, पूर्ण डिमोटिवेशन जाते. आरती मॅमकडे मी 4 हफ्त्यातून 2 का 3 वेळा जायचे. मॉक कॉल घ्या, मला नाही येते, मला दुसरे कुठे टाका, मला नाही करायचंय. कारण मी केलंच नाही माझं करिअर फायनान्स मध्ये. मी करते बिझनेस डेव्हलपर. खूप म्हणजे हे होतोय, डिफरन्स येतोय. बट तरी केलं. आणि आता त्यांनीच मोटिवेट केलं. त्यांचं मोटिवेशन तर आमच्यातच आहे, मला माहिती आहे काय आहे. पण त्याच्यामुळे माझं झालंय. आणि जुलैचं जर माझी शीट बघायला गेलो ना, पूर्ण 0 आहे. संपूर्ण म्हणजे 0 0 0 0 0 0. मॅम विचारते कुठे लॅक करतेस, मी मलाच माहिती नाही. मॅम मध्ये कुठे लॅक करतेस, काय प्रॉब्लेम टेन्शन, मी मलाच माहिती नाही मी काय करते. पण लास्टच्या 2 हफ्त्यात त्यांच्यामुळेच झाले. आणि मेन म्हणजे दीपाली मॅम, मी लॅपटॉप वरती काय करते अशीच ब्लँक झोपून असायची. ते बोलते हे हिरोईन, त्यांचा डायलॉग फिक्स आहे, ए हिरोईन काय चाललंय तुझा. बोलून 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 मला खरंच अमोल सरांनी हिरोईन केली व्हिडिओवरती. जा व्हिडिओ काढ, हे कर ते कर, बोलून जेनझी करून करून मला. मी ऍक्च्युली ह्यांच्यापेक्षा पण मोठी आहे, बट दिसायला छोटी दिसते. प्रतीक्षा मॅम मला बोलतात ते 2 इंटर्न जॉईन झालेत ना, ते तुझ्यापेक्षा छोटे आहेत 2 का 3 वर्ष. मी बोला असं होऊच नाही शकत. त्यांना बघून मला वाटतं ते माझ्यापेक्षा 2 ते 3 वर्ष एक्सपिरियन्स्ड आहेत. बट मी फ्रेशर आहे. आणि मला वाटलं नव्हतं की माझं कम्युनिकेशन एवढं सुधरेल ना. मी आता पण स्टेजच्या समोर बोलते म्हणजे खूप हे आहे. खरंच थँक्यू आरती मॅम, अमोल सर आणि दीपाली मैम, त्यांच्यामुळे जे मला कॉन्फिडेंस आया ऑफ माय जर्नी इन दिस अमोआ कॉर्पोरेशन. मैं इंटरव्यू से नहीं चालू करूंगी, मैं उससे पहले से चालू कर दूंगी. एवरीबॉडी इज लाइक इंटरव्यू से, बट मेरा भी इंटरव्यू अमोल सर ने ही दिया था. बट उससे पहले मैं 6 मंथ्स तो घर पे थी, क्योंकि मुझे ना एकदम मैं एंजाइटी, नर्वस, डिप्रेशन फेज में थी कि कॉर्पोरेट में जाना इज लाइक वेरी डिफिकल्ट.
ओके कॉर्पोरेट में वर्क करना, क्योंकि मेरे सारे भाई बहन जो है, जो भी कजन्स है, वो कॉर्पोरेट में वर्क करते हैं. दे टेल यू द पॉलिटिक्स अबाउट द कॉर्पोरेट एंड बेसिकली एचआर कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनके कॉलिग्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, सामने से अच्छा है पीछे से अलग है. तो मुझे डर लगता था कॉर्पोरेट से. तो मैं पहले टीचिंग में गई, बट टीचिंग भी स्टैग्नेंट ग्रोथ है वहां पर. देन 6 महीने के बाद कैसे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करके मैं इंटरव्यू के लिए आई. मानसी मैम ने स्केड्यूल किया था इंटरव्यू, एंड उसके लिए भी लेट हुई मैं, क्योंकि मैं अवंतिका जी के साथ ही आने वाली थी, बट अवंतिका मैम के साथ 28 को ही. बट देन धीरे धीरे फिर 4th को आई और मौसा जी ने मेरा इंटरव्यू लिया. एंड पहले क्वेश्चन था कि आप ऑफिशियल व्हाट्सएप पे है, पता है आपको? तो मुझे लगा नॉर्मल नॉर्मल वाला है व्हाट्सएप. तो मैंने बोला ठीक है, हाँ वो तो पता है. मैंने बोला नहीं, वो स्विगी एंड जेप्टो वाले जो यूज करते हैं वो होता है. तो मैं जब स्टार्टिंग में थी तो मुझे ऑफिशियल व्हाट्सएप एपीआई ही नहीं पता था कि क्या है. एंड अब मैं 1 ईयर के बाद, बेसिकली अभी 3 दिन बाकी है, बट अब 1 ईयर के बाद मैं ऑफिशियल व्हाट्सएप एपीआई के, बेसिकली हमारे पैनल के सारे टेक्निकल इश्यूज ट्रबल शूट करती हूँ. मतलब इफ कस्टमर को कोई इश्यू आ रहा है तो आई नो कि व्हाट इज द सोल्यूशन. अब मैं उन्हें ऐसे नहीं बोलती कि रुकिए मैं आपको देख के बताती हूँ. But seriously, this is all because of Amol sir. First of all, I would like thank to CEO sir, Amol sir. You are so much inspiring us, and then you are motivating daily. And whenever I can have any talk to you, I will get more positive energy. Then I would like to go Aarti ma'am also. She's also very polite and humble person. She's also helping me such whenever I get any and I have any doubts, she will help me more. Then I have so much nice team members also. So मैं इंटरव्यू से बताती हूँ कि मैं इंटरव्यू के लिए कैसे आई थी. फर्स्ट मैं टेलीकॉलर का देख रही थी दूसरे साइड में, बाजू के ऑफिस में रियल एस्टेट के सर थे. सो वहाँ पे मैं 2-3 बार गई, बट मैम ने बोला कि एक बार ट्राई करो यहाँ पे. तो मैं आई, वो भी कैसे आई थी, सागर के ड्रेस में आई थी लंच टाइम में, क्योंकि फिर उसके बाद मैम ने बोला कि एक बार इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं. वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ था दिव्या मैम के साथ. फिर यहाँ पे निर्जा मैम से अपॉइंटमेंट ली. उसके बाद सर आए, सर ने बोला कि ठीक है नेक्स्ट डे इंटरव्यू करके. सो जैसे सर को सागर का सब कुछ पता था, मुझे कुछ नहीं पता कि उनको A to Z पता. मतलब क्या बोलूं अभी कि जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ की A to Z हिस्ट्री इनको पता है. और ये पूछो हितेश सर कैसे, ये कैसे, वो कैसे, मैं शॉप के में मैंने उनको बताया भी नहीं है. और ये यहाँ पे इनको कैसे पता चल गया. तो मैं इनको इंटरव्यू में बोल रही हूँ कि सर किसी को कुछ भी बताना मत प्लीज, ऐसा वैसा. सर बोले इट्स ओके यार, कुछ नहीं बताऊंगा. उसके बाद सर ये ऐसे ही मेरा फर्स्ट टाइम है तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बस सुन लो आप लोग. ओके तो इंटरव्यू हुआ मेरा, और उस दिन भी बीमारी थी मैं. कैसे हुआ इंटरव्यू पता नहीं. मेरे सर ने बोला ठीक है कल से आ जाओ. मैं बोली 1 तारीख से आती हूँ. हाँ क्योंकि मुझे एक भी दिन में मेरे घर पे वेस्ट नहीं करना था. जैसे मैंने यहाँ पे छोड़ा, सेकंड डे में यहाँ पे ज्वाइन हो गई. एक तो पहला दिन ऐसा क्या कि आरती हमने बोला जाओ कैबिन में बैठो, सबके साथ देखो सब क्या कर रहे हैं, सीखो वो सीखो. और इसका मतलब लैपटॉप को कभी हाथ ही नहीं लगाया था. मतलब किया तो बहुत पहले, बट हाथ ही नहीं लगते ये होता क्या वो होता क्या, ऐसा वैसा. बोला हाँ ठीक है. आरती मैम को बोली बोर हो रही. फिर उन्होंने मानसी मैम को बुलाया और बोला कि लेके जाओ वहाँ पे. फिर गई मैं वहाँ पे. 1 हफ्ते तो ऐसा गया कि दिव्या ने बोला कि बस देखो कि चल क्या रहा है. मतलब मतलब अलग ही थी. मैं वहाँ पे मैं सेल्स करती थी, और यहाँ पे क्या है मेरे को लैपटॉप में बैठा दिया था इन लोगों ने. कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था. धीरे धीरे सीखी तो हाँ अच्छा हुआ. मतलब सेल वगैरह अच्छा लगा फिर कि हाँ सही जगह पे बैठी हूँ. उसके बाद 2 मंथ मेरा काफी अच्छा गया. 3rd मंथ में ना एकदम जीरो कॉन्फिडेंस गया कि मतलब ये तो मेरे से बाद आके अच्छा करिए, ऐसा करिए वैसा करिए. और मैं कहाँ पे हूँ, किस स्टेज पे हूँ मैं. मतलब 4 महीने होने को आ गया और कुछ नहीं हो रहा. फील हुआ सर ना गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने बातों मैंने बोले कि मुझे निकलना है यहाँ से. सर बोले कि क्यों. मैंने बोला नहीं हो रहा है मुझसे. तो सर ने मोटिवेट किया कि होगा और होगा. और अब लग रहा है
कि सच में होगा और सच में सर थैंक यू। और मुझे लग रहा है कि मेरा फ्यूचर बहुत पक्का है इसके अंदर। मैं करूंगी सर, सब कुछ करूंगी A to Z। टाइम लगेगा बट हो जाएगा, सारी चीजें मुझसे होंगी। अरे हॅलो, ऍक्च्युली जेव्हा मी फर्स्ट टाइम इंटरव्ह्यू पासून स्टार्ट करते, मी जेव्हा फर्स्ट टाइम इंटरव्ह्यूला आली होती, माझा इंटरव्ह्यू प्रतीक्षा मॅमनी फर्स्ट घेतला आणि काय लव होतं माहिती नाही, मी पण असं जस्ट रॅन्डमली जॉबच सर्च करत होते एनएमएस आयकॉन मध्ये, आणि तिथून मला दिव्या मॅमला जस्ट मी विचारलं की दिव्या मॅम मुझे जॉब करना है, वैकेंसी है क्या? तो तो तिने म्हटलं की हो आहे, तुम्ही शकुन रियालिटी मध्ये जावा, तिथे तुम्हाला जॉब भेटेल. म्हटलं ओके ठीक आहे. मग प्रतीक्षा मॅमशी भेटली. प्रतीक्षा मॅमचा फर्स्ट इंटरव्ह्यू त्यांनी घेतला, सेकंड सरांनी घेतला. माहित नाही का सरांमध्ये सरांनी माझ्यामध्ये काय बघितलं काय नाही. त्यांनी जे विचारलं ते तर लांबचीच गोष्ट आहे, बट खूप ग्रेट आहेत सर. त्यांच्यामुळे मी 4 डील केले सर, 1 month मध्ये, एंडिंग मध्ये. आणि टीम मध्ये तर मला कोणी एक्सेप्ट करतच नाही फर्स्ट ऑफ ऑल, पण रेडीच नाही घ्यायला. बट आरती मॅम ग्रेट आहेत. आरती मॅमनी मला म्हटलं की तू माझ्यासोबत राहा, माझ्यासोबत काम कर, मी तुझी मॅडम समजून तू मला ऍज अ टीम लीडर वगैरे काही समज तू कर. आणि त्यानंतर मग मी आरती मॅम माझीच टीए, माझी टीम लीडर तीच आहे, कोणी नाही असं विचार करून मी छोट्या छोट्या गोष्टी आरती मॅम कडेच जाते, दुसऱ्या कोणाला विचारत नाही. आणि आता जस्ट माझी 1-2 वीक झाली माझी कृष्णावेदी फ्रेंड झाली. ती पण इंग्लिश मध्ये बोलावं लागतं पण ठीक आहे. खूप छान आहे. आणि HR मध्ये पायल पण मला खूप सपोर्ट करते. अकाउंट वाली बापरे, ते तर तर म्हणजे माझे जे पण डाऊट्स आहेत मी सगळ्यांकडे क्लिअर करते. खूप छान टीम आहे. माझं ग्रोथ मला इथे कळतंय की काय आहे करून. सो थँक्यू सर. जेव्हा पण मीटिंगला जाते तर मला मी खूप छान शिकते. असं वाटतं तुमच्याकडे रोज येऊन बसावं मीटिंगसाठी. सो थँक्यू सर, थँक्यू आरती मॅम, आणि थँक्यू प्रतीक्षा मैंने प्रिपेयर करके नहीं आई, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँगी. गुड आफ्टरनून फर्स्टली. मी जेव्हा इंटरव्ह्यूला आली ना, तर मी याच्या आधी एका टेलिकॉलिंगमध्ये जॉब करत होते, पण मला एकच मंथ झाला होता. पण तो माझ्या मुलीमुळे मला पॉसिबल नाही झालं, कारण तुर्भेला जावं लागत होतं आणि टाइम मॅच होत नव्हतं. म्हणून आहे ना, माझ्या हजबंडनेच पेपरामध्ये एक नोट बघितली, ते पॅम्पलेट देतात ना, ती वाढली. तर जेव्हा मी इंटरव्ह्यूला आली, माझा पहिला क्वेश्चन निर्जा मॅमला हाच होता की मला टाइम मॅनेजमेंट हवं, कारण मला माझ्या मुलीसाठी एवढाच वेळ आहे, तर मी 9:30 ते 7:30 जॉब करू शकते. तर त्या बोलल्या की ठीक आहे, मला पण 2 मुलं आहेत, तर मी तुझं सिच्युएशन ती समजू शकते म्हणून असं. मग तो इंटरव्ह्यू झाल्यानंतर मी सरांनी पण माझा इंटरव्ह्यू घेतला आणि सर बोलले की तुला ऍड कुठे कळली. तर तेव्हा त्यांनी मला व्हॉट्सअप एपीआय बद्दल नव्हतं विचारलं आणि मला काहीच माहित नव्हतं काय आहे व्हॉट्सअप एपीआय. मग मी त्यांना बोलले की पेपरात आलेले ऍड आणि ते बघितले. तर सर मला सरांचा क्वेश्चन असाच होता की पेपर म्हणजे कोण वाचतं, टीव्ही कोण बघतं, न्यूज कोण बघतं. मी बोलले की नाही, आमच्या घरी पेपर येतं आणि आम्ही वाचतो. तर ते बोलले की पेपर वाचायला किती वेळ देतात ना तुम्ही, म्हणून असं की आम्ही बोललो की नाही, सकाळचे जे 10-15 मिनिटं अर्धा तास जो भेटतो तर आम्ही पेपर वाचतो. पण नंतर मग त्यांनी हळूहळू सांगितलं की व्हॉट्सअप एपीआय काय आहे, मग ते सर्व्हिस वगैरे सांगितलं. पण मी सांगेल की त्यांनी मला सारिका मॅमच्या टीम मध्ये मी जेव्हा केली, मला माहित नव्हतं की मॅम पुण्याला असतात म्हणून असं. पण हो, म्हणजे मला आधी ना हा जॉब, म्हणजे मी खरं सांगेल की मला टेलिकॉलिंगचा जॉब वाटत होता की कस्टमरला कॉल करायचं, कन्व्हिन्स करायचं, आपल्या सर्व्हिस सांगायच्या. तो कन्व्हिन्स झाल्यानंतर हा ती तर वेगळी गोष्ट. पण 1 मंथ मध्ये मला खूप शिकायला भेटलं आणि हळूहळू कळलं की नाही, टेलिकॉलिंग नाहीये, म्हणजे सॉफ्टवेअर मधलाच काहीतरी जॉब आहे. आणि सॉफ्टवेअर आपल्या जवळ जे आहे, फक्त आपलं नॉलेज आहे ते कस्टमर पर्यंत आपल्याला पोहोचवायचंय. बस मी ते शिकली. पण 1 महिन्यामध्ये माझं काहीच नाही झालं, झेड होतं. नेक्स्ट मंथ पण मी खूप ट्राय केला, पण
मे बी. आणि हा ह्या मंथमध्ये जे काही टार्गेट होतं माझं लास्ट डे पर्यंत जेवढं होतं स्टार्टिंगला झालेलं तेवढंच, पण लास्ट डेला मला आरती मॅम आणि सारिका मॅम खूप सपोर्ट भेटला आणि लास्ट मंथ मध्ये त्यांनी माझं 1 लाखाचं टार्गेट कम्प्लीट केलं. और केम शो बता अरे वाह डेफिनेटली इंटरव्यू से स्टार्ट करती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं हाउस वाइफ थी, सोचने नहीं थी जॉब करने के लिए. आफ्टर दैट मैंने सोचा घर पे बैठ के क्या करना है तो मैंने बोला चलो जॉब कर लेते. फिर बहुत जगह पे जॉब ट्राई किए लेकिन बाहर कॉन्सिडेंटली मतलब ऐसे हुआ कि मेरी नेक्स्ट बिल्डिंग में इंसिग्निया में ऑफर मतलब ये है जॉब वैकेंसी है अम्बोक ऑपरेशन में. मैंने बोला चलो ट्राई करते हैं. तो सर के साथ मेरी कोऑर्डिनेशन अच्छा हुआ था वो टाइम पे. सर ने बोला था आप बिजनेस ओरिएंटेड हो. मैंने बोला कैसे सर? तो बोला कि आप गुजराती हो, बिजनेस ओरिएंटेड ही होना चाहिए आपका बिजनेस हाई जाना चाहिए. मैंने बोला ठीक है सर. तो फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ. मैं पहले बीडी में थी. आरती मैम ने बहुत सपोर्ट किया, सर ने बहुत सपोर्ट किया, टीम बहुत सपोर्टिव थी. लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने वहाँ पे वर्क नहीं किया ज़्यादा 6 मंथ में. मतलब गिव अप कर दिया था मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल. फिर से कॉल आया फिर कृपा मैम ने मुझे बहुत हेल्प किया. उन्होंने बहुत सपोर्ट किया आगे जाने के लिए. मुझे मतलब कुछ भी मुझे टेक्निकल कुछ भी नहीं आता था. ऋतुजा मैम, वंदिका मैम ने बहुत हेल्प किया है मुझे. थैंक यू फॉर दैट. और बस इतना ही. मुझे जितना भी आता था टीम में, जितने भी मुझे सपोर्टिव है जो भी है, कृपा मैम ने मुझे बहुत आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया है. उसके लिए थैंक यू सर. थैंक यू आंटी मैम. एक्सपेक्टेडली नाम ले रहे. पहिलं तर अमोल सरांना खूप थँक्यू की मला ही अपॉर्च्युनिटी दिली. पहिला तर मी प्रिपेअर नव्हती की मी हे जॉब करू शकेल की नाही. मी खूप डिमोटिवेट झाली होती, खूप रडली आहे पहिला 1 हफ्ता. पण आरती मॅमने खूप समजून घेतलं. मी स्विच करायचं पण खूप विचार केला की नाही होणार माझ्याने, हे काय आहे की खूप नेगेटिव्ह रिस्पॉन्स. पहिले 10 दिवस तर असं की नाही मेरे को जाना है, ऐसे छोड़ दो किधर फंसती हो. पण नंतर जे मी आरती मॅमने सांगितलं की नाही तू करशील, थोडं ट्राय कर. ग्लोरी मॅम इथे नाही आहेत, ऑफकोर्स मी मिस करते. आणि त्यांनी खूप सपोर्ट केला आजपर्यंत की मला प्रत्येक म्हणजे लो झाले तरी त्यांनी मला खूप हे सपोर्ट केले. ग्लोरी मॅम असते का ते नसतं दीपाली मॅम फॉर शुअर की मला कधीच एकटं फील नाही झालंय. जस्ट बिकॉज की आरती मॅम, दीपाली मॅम, प्रांजल आणि ग्लोरी मॅम खूप खूप जास्त सपोर्ट केलंय ओव्हरऑल. आणि कधी गरज पडे तर सर असतातच की अरे तू कर रही है इतना किया की थँक्यू. मला असं आता पण मला असं की मेरे को नहीं बात करना, मी रोडूंगी. मला असं की मेकअप म्हटलं सोडेल की नाही हो रहा. पण मला आता ना मनच नाही वाटत की मेरे को इधर ही रहना है. ते यासाठी की नाही आगे नाही जाणार. मी तर कॉलेज जाईन जसं हफ्त्याला 3दा ते पण जात नाही की मेरे को इधर बिझनेस करना है. मी मॅमला बोलले की मी हफ्त्याला 3 दिवस नाही येणार. मी कॉलेजला पण 3 दिवस गेले महिन्यातून. इथेच असतं की माझं मन इकडेच अटकलंय. आणि जशी माझी आता ग्रोथ आहे लास्ट मंथ पासून तर खूप चांगली आहे आय गेस. अँड जस्ट बिकॉज ऑफ सर, आरती मॅम आणि फॉर शुअर दीपाली मॅम आणि ग्लोरी मॅम. आणि मी जास्त करून लाईक खूप डाऊन फेस हे केलं पण ग्लोरी मॅमने खूप जास्त सपोर्ट केला आणि आरती मॅमने फॉर शुअर किती थैंक यू सो मच सर. अमोल सर ने ही मेरा इंटरव्यू लिया है और मेरे करियर में तो 6 साल का गैप था. और मुझे एडिटिंग बहुत पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा. तो उसके लिए मैं कैसे भी कुछ भी करके करती हूँ मैं. और उसके बाद सर ने बस ये मेरा पैसन देख के मुझे हायर किया और आई थिंक मैंने वो प्रूव किया मैंने खुद को. उसके बाद मानसी मैम ने मुझे बहुत गाइडेंस दिया, सपोर्ट किया. मुझे कुछ नहीं भी आ रहा है तो भी उन्होंने कहा कि नहीं होगा, आप स्टडी सर्च करो, हो जाएगा. और अब मैं बेसिक वीडियो एडिटर से एआई एडिटर बन गई हूँ. अभी मेरा ये रहता है कि मुझे इतना तो कंप्लीट करना ही है क्योंकि इंसेंटिव लेना है. तो अपने आप को ही कंप्लीट कर रही हूँ मैं, अपने टारगेट को मैं ब्रेक कर रही हूँ. तो थैंक यू सो मच अमोल सर, मानसी मैम
और बाकी पूरे अमुआ की टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है हर चीज़ में। मैं बहुत थोड़ी शाई टाइप हूँ, तो वो सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू। So first of all, hello everyone. My name is प्रगति और मैं अमोआ डिजाइन स्टूडियो में हूँ। पहले मैं कॉरपोरेशन में थी। मेरी बहुत ही अलग जर्नी है। सबसे पहले तो मेरा इंटरव्यू सर ने लिया था एज अ बिजनेस डेवलपर के लिए, बट उसके लिए मैंने अप्लाई, थोड़ा डिप्रेशन फेज बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ फैमिली इशू, तो उस वजह से मैंने वहाँ पे अप्लाई किया था, बट मुझे आता कुछ नहीं था। तो मुझे मतलब भी नहीं पता था, सच बोलो तो। बट कैसे कैसे करके मैं वहाँ रोते धोते चौथे ही दिन में रोने लगी थी सर के सामने। नहीं होगा सर, घर पे जाके भी रोई, ट्रेन में बस में, क्या करूँ क्या करूँ, बहुत सारे दिमाग में ऐसे वैसे थॉट्स थे। फिर एक बार सर के साथ मीटिंग हो गई कि नहीं होगा ऐसे वैसे वो सब। फिर सर ने जो मेरा एक, मैंने उनको ऐसे ही मजाक मजाक में बताया था कि मुझे ग्राफिक वगैरह करना काफी पसंद है, मैं सोच रही थी क्लास भी लगाओ। फिर सर ने उसके ऊपर बोला कि बहुत पैसे आ रहे हैं तो मुझे दे दे। तो फिर वही बात उन्होंने दिमाग में रख के फिर मुझे कहा कि अपना डिजाइन स्टूडियो भी है, तो वहाँ पे तू अपना जो भी इंटरेस्ट है तू उधर दिखा। तो अभी जितना भी मेरा इंटरेस्ट है, मेरी फेवरेट बोल सकती हूँ, मैं अभी वही कर रही हूँ। और थोड़ा बहुत मानसी मैम डांट के मार के गालियां भी दे के काम करवाती है मेरे से ऐसे। तो और तो कुछ प्रिपेयर नहीं किया है। एंड सुप्रिया मैम भी है, हर्षदा मैम भी है जो हमेशा सपोर्ट में रहती है। हाँ, रेणुका भी है। थँक्यू सर, अमोल सर. फर्स्ट ऑफ ऑल मी एप्रिलमध्ये जॉईन झाले होते. माझा इंटरव्ह्यू नीरजा मॅमने घेतला. त्याच्यानंतर मग रेश्मा मॅमने, रेश्मा मॅम आल्यात आमच्या. मग नंतर थोडा माझा जो इंटरव्ह्यू झाला तो अमोल सरांसोबत झाला. ते बोलले तुझे एवढा गॅप पडलाय 5-6 वर्षाचा, आणि मी केलं नव्हतं, मी अकाउंट्समध्येच केलं होतं, ते पण आपलं हेच एंट्री वगैरे ह्या गोष्टीचा जॉब मी केलेला. त्याच्यानंतर त्यांनी सांगितलं हे खूप वेगळं, हे इंटरनल आहे, तुम्हाला काही गोष्टी माहिती आहेत का, म्हणजे नेटवर्कच्या, व्हॉट्सअप काय, मेटा काय, काहीच मला माहित नव्हतं सर. खरं सांगायला गेलं एक हाऊसवाईफच समजा तुम्ही मला. काहीच माहित नव्हतं. पण त्यांनी बोलले पूर्ण लॉंग टर्म साठी विचार करा, आणि इंटरव्ह्यू माझा त्यांनीच घेतला आणि मी आहे इथे. आणि आणि सगळं एक 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 काहीच कळत नव्हतं मला, काय काही नाही. मिस्टर पण बोलले जा, कारण आम्ही प्रोफाईल्स वगैरे बघितलेले, तर हे बोलले इंटरनलच आहे, म्हणजे आता ऍडव्हर्टायझिंग वगैरे, आणि तुला खूप शिकायला मिळेल. त्यांनी पण अप्रोच केलं की जा तू काहीतरी करशील तिथे जाऊन. तर डेफिनेटली आता मी सगळं कळालंय मला, म्हणजे काय व्हॉट्सअप काय, फेसबुक काय, काहीच नव्हतं कळत सर. पण सगळं इथे तुमच्यासोबत बोलून, रेश्मा मॅमशी सोबत बोलून खूप साऱ्या गोष्टी शिकले. आणि माझं स्किल आहे मला माहितच नव्हतं की मी समोरच्या कस्टमरला पण अप्रोच करून त्यांना एक सोल्युशन देऊन मी त्यांना बिझनेस अंडरस्टँड करून त्यांना सांगू शकतो. आणि हे स्किल मला इथे आलं कळालं की माझ्या बोलण्यामध्ये आणि ह्याच्यामध्ये हे स्किल आहे. डेफिनेटली मी आता खूप छान बिझनेस करते आणि मला अजून बिझनेस करायचा आहे. थँक्यू रेश्मा मॅम, तुम्ही मला संधी दिली सर. थँक्यू सर. आरती मॅमला तर भारी आहे, आरती मॅम खतरनाक, खूप सपोर्टिव्ह आहे. असं वाटत नाही, पण टीम वर्क मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. टीम वर्कनेच माणूस पुढे जातं, हे ते ओळखले मी. थँक्यू सगळ्यांना. थँक्यू. 9 जॉईन झाले होते मी. आरती मॅमने इंटरव्ह्यू घेतला होता माझा. तेव्हा काहीच माहिती नव्हतं की मेटा काय असतं, मेटाबद्दल व्हॉट्सअप कॅम्पेन वगैरे काहीच माहिती नव्हतं. तेव्हा काही एवढं प्लॅन नव्हतं की करायचं पुढे जाऊन. पण आधी मी 6 फ्लोअर गेले, तिथे काय माझा एक्सपिरियन्स चांगला नाही राहिला एवढा काय. नंतर विचार केला की नाही आपण नको इथे. पण नंतर मी वैष्णवी मॅम सोबत, एम्ब्युलन्स कॉर्पोरेशन सोबत काम केलं. त्याच्यानंतर त्यांचा पण सपोर्ट खूप भेटला मला, आणि रेश्मा मॅम सोबत पण, आणि खूप चांगल्या गोष्टी मला शिकायला भेटल्या. आणि एन्व्हायरमेंट इथलं खूप छान आहे, सर्व फ्रेंडली आहेत.
सरांकडून टिप्स भेटल्या मला आणि कॉन्फिडन्स वगैरे खूप बिल्ड झाला माझ्यात आणि सरांनी मला या ऑपोजिट दिली टीम लीडर. थँक्यू सर. आणि रेश्मा मॅम, वैष्णवी मॅम आणि पूर्ण टीम खूप सपोर्ट केलाय. थँक्यू सो मच. हॅलो सगळ्यांना, गुड आफ्टरनून. माझं नाव नेहा, मी रिद्रो कॉर्पोरेशनमध्ये तिकडे बसते एम एस मध्ये. तर आय टी फील्ड हे माझ्यासाठी खूप नवीन आहे. मी प्रॉपर बँकिंगमध्ये फायनान्समध्येच काम केलेले आणि तेही ऑपरेशनमध्ये काम केलेले आणि सेल्सचा एक्सपिरियन्स आहे मला. तसं मी पहिले क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन याच्यासाठी टेलिकॉलिंगचंही काम केलेलं आहे. आय थिंक तो एक्सपिरियन्स ऐकूनच सरांनी मला हे केलं की तू करू शकते, होईल. आणि सरांनी मला इंटरव्ह्यू मध्ये काहीच सांगितलं नव्हतं. मी जॉईन झाले त्या दिवशीही मी सरांना विचारलं होतं की सर नेमकं काम काय आहे. सर मला फक्त म्हणायचे नाही, तू करणार आहेस, तू करू शकते, तुझंच काम आहे, फक्त तू थोडं अजून स्टडी कर, तू खूप कमी वेळात करू शकते. आणि मलाही वाटते की मी केले आणि करेल, अजूनही होईल माझ्याकडनं. खूप म्हणजे डिफरन्स खूप जास्त आहे जमीन आसमानचं. की ते ऑपरेशन आणि हे जे टेक्निकल काही गोष्टी आहेत, ह्या लॅपटॉप वगैरे ते यूज करतच होते मी, त्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम नाहीये. पण हे जे काही फील्ड आहे, जे आपले प्रोडक्ट्स आहेत, हे खूप वेगळे आहे. ज्याच्यात मी काम केलं ते आणि हे खूप वेगळे आणि कमी वेळेत मी शिकले तेवढं मला. आणि जेव्हा जेव्हा मीटिंगला येतो तेव्हा तर काय म्हणजे विषयच नसतो. सर सांगतात आणि सरांसोबत मीटिंग केली की असं वाटतं की यार 8 दिवसातून आपण कुठून कुठे जाऊ शकतो, असं आहे. सर म्हणजे इन्स्पिरेशन खूप छान देतात आणि ग्रोथ इथं आहेच. मी फर्स्ट डे सरांना बोलले, अजूनही माझं हेच आहे. मी घरी सांगितलं, मी माझा हा लास्ट जॉब आहे, मी इथंच करणार आहे लास्ट पर्यंत. इथे मला ग्रोथ दिसतीये, काय जे काय आहे ते इथेच. आणि थँक्यू सर, खरंच म्हणजे आजपर्यंत मी ऍज अ म्हणजे जे काही मी बॉस बघितले त्याच्यापेक्षा तुम्ही खूप वेगळे आहात. फ्रेंडली पण आणि जेवढं तुम्ही समजून सांगता सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये म्हणजे एक असं वाटतं की असं लीडर पाहिजे आपल्याला. की तुमचं खरंच थँक्यू सो मच तुम्हाला. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. सबसे पहले मैनेजमेंट को दिल से शुक्रिया ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, मुझे मौका देने के लिए. लाइक मैं दीपाली, अभी पता चल गया वॉट्स बॉक्स डिपार्टमेंट की टीम लीडर. हाँ, तो मैं भी अपनी जर्नी बताती हूँ. फर्स्ट तो मैंने अक्टूबर में अपना कॉर्पोरेशन ज्वाइन किया था एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव. और उस वक्त मैंने कभी सोचा नहीं था कि लाइक 10 महीने के अंदर मुझे व्हाट्सबॉक्स डिपार्टमेंट का टीम लीडर बनने का मौका मिलेगा और मुझे खुद का ऑफिस, खुद का कैबिन मिलेगा. सच कहूँ तो जब मुझे व्हाट्सबॉक्स ऑफिस दे रहे थे तब मैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी ही नहीं थी. मैंने बोला था मैं नहीं करूंगी ये, मुझसे नहीं होगा करके. तो तभी मुझे लगता था कि शायद मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए अभी नहीं हूँ रेडी. लेकिन उस वक्त 2 लोग एक अमोल सर और आरती मैम. आज भी मुझे अमोल सर की वो बात याद है जो उन्होंने मेरे इंटरव्यू में कही थी. उन्होंने मुझे कहा था, मुझे पेपर ठेवणं चांगलं बोलू शकते मला असं वाटतं. वो भूल गई सब कुछ. ठीक है. तो अमोल सर ने कहा था कि तुझे मैं टीम लीडर के हिसाब से देख रहा हूँ और तू कुछ बड़ा करेगी, मैं तुझे उस लेवल तक लेके जाऊंगा बिकॉज तेरे में वो स्किल है. उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि वो मुझ पर इतना ट्रस्ट क्यों कर रहे हैं. उन्होंने ऐसा क्या देखा मुझ में और ऐसा क्यों बोल रहे फर्स्ट डे इतना कुछ. तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जैसे मेंटर मिले उसके लिए क्या बोलूं. हॅलो एव्हरीवन, माझं नाव अवंतिका. सगळेजण इथे येऊन बोलतात की मी प्रिपेअर नव्हते, पण मी खूप प्रिपेअर होऊन आली. सरांना खूप जास्त माहिती आहे की इथे बोलण्यासाठी मी खूप जास्त उत्साही आहे. आता रिसेंटली माझी 1 year अॅनिव्हर्सरी झाली, त्याच्यामध्ये सर नव्हते आणि तेव्हा पण मी माझी जर्नी एक्सप्लेन केली आहे सगळ्यांना. पण तरी पण इथे तुमच्या समोर बोलण्याचं आलंय. सगळेजण त्यांच्या इंटरव्ह्यू पासून स्टार्ट करतात. मी आपल्या ऑफिसची बिल्डिंग कशी शोधली त्याच्यापासून स्टार्ट करते. कारण उल्वे सगळ्यात पहिले आपल्याला एखादं लोकेशन भेटलं की आपण ते एम इंडिकेटर वरती शोधतो. मला उल्वे एम इंडिकेटर वरती कधीच भेटलं नाही.
मग मी घरी पाठवलं तर घरच्यांनी शोधल्यानंतर कळलं की ते बामण डोंगरी आहे आणि त्याच्यानंतर रेल्वे स्टेशन आणि तिथून मग उल्वे आहे असं. पहिल्यांदा तर एवढ्या लांब मी राहणार पनवेलला आणि मी जेव्हा जॉईन झाले तेव्हा मी कॉलेज करत होते, त्यामुळे मग एवढ्या लांब यायचं मी खूप टाळाटाळ केली होती यायची. मानसे मॅमला माहितीये, मानसे मॅम मला अपॉइंट करायच्या, मॅम तुम्ही येणार आहात ना? आय वॉज लाईक हा मॅम, आज माझं डोकं दुखतंय मी उद्या येते, आज मला ताप भरलाय मी उद्या येते. पण फायनली एक दिवस मी निवडला, मी आले. अनफॉर्च्युनेटली तेव्हा सर नव्हते. माझा इंटरव्ह्यू माझ्या टीम लिडरने अश्विनी मॅमने घेतलाय. माझ्या वर्क अॅनिव्हर्सरीला पण त्या नव्हत्या, आज पण त्या नाहीयेत. वी मिस यू मॅम. तर त्यांनी इंटरव्ह्यू घेतला. हॅलो मॅम. ओके, त्यांनी इंटरव्ह्यू घेतला माझा आणि त्या बोलल्या की तू कॉलेज करतेस, तू कसं हँडल करणार आहेस? तर मग मी बोलले की करायचं तर आहे जॉब, शेवटी कॉलेज नंतर करायचं तर कॉलेजमधूनच स्टार्ट करू. तर मग मॅम बोलले की ठीक आहे चालेल. इंटरव्ह्यू झाल्यानंतर मग मला परत असं समजलं, मी हॅपी होते, हा झाला इंटरव्ह्यू, छान झाला. मग परत असं समजलं की सर पण इंटरव्ह्यू घेणार आहेत. मग तिथून खरा गेम स्टार्ट झाला. थँक्यू अमोल सर. पहिली गोष्ट तर मी आहे इथं, तुम्ही आहेत म्हणूनच मी इथं आलेली आहे. पहिली गोष्ट तर कारण की माझी IT बॅकग्राऊंडच नाहीये. पहिली गोष्ट म्हणजे मी IT केलंय, पण किती 5 ते 6 वर्षाचा गॅप, त्याच्यामध्ये हा इंटरव्ह्यू. आणि त्या इंटरव्ह्यू मध्ये मी आले. मला IT मध्ये जायचंच आहे, करायचंच आहे, हा माझं स्वप्न होतं आणि ते सरनी पाहिलं. त्याच्यामुळे मला असं वाटलं की हा प्लॅटफॉर्म खरेखर आपण पुढं घेऊन जायला पाहिजे आणि त्याच्या थ्रू मला कॉन्फिडन्स मिळाला. आणि मेन सरांनी माझ्यामध्ये कॉन्फिडन्स बघितलं आणि त्याच्यावरती मी वर्कआउट पण केलं आणि त्यांनी स्किल ओळखली. पहिली गोष्ट कम्युनिकेशनची माझी स्किल आहे ती त्यांनी ओळखली आणि त्याच्यामुळे मी इथं आहे. आणि तेच माझ्या टीमने करून दाखवलंय का त्यांनी माझ्यामध्ये कॉन्फिडन्स दाखवला आणि त्यांनी मला इथपर्यंत ह्या प्लॅटफॉर्म पर्यंत आणून देण्याचा मार्ग ही माझी टीम आहे. त्यांच्यामुळे मी इथं उभी आहे. आणि जेव्हा मला टार्गेट दिलेलं आहे ना, येस, मी त्यांना बोललेली आहे, प्रेशर पण केलेलं आहे, पण हा ते प्रेशर त्यांनी पण हँडल केलेले आहे का नाही बाबा, करून दाखवायचंय. आपली वाबा टीम पुढं पाहिजे आणि हा खरे मी इथं उभी आहे ना माझ्या टीम पुढे उभी आहे. पण थँक्यू ही ऑपॉर्च्युनिटी दिल्याबद्दल. ऍक्च्युली स्टार्टिंग तर सगळ्यांनी इंटरव्ह्यू पासूनच केली, पण झाला इंटरव्ह्यू एक मधून म्हणजे टीम मध्ये जॉईन केलं. पण त्यानंतर सरांनी सांगितलं की नाही, तुझ्यामध्ये लिडरशिप आहे, तू लिडरशिप करू शकते. ठीक आहे, मला विश्वासच नव्हता आणि मी घेतली ऑपॉर्च्युनिटी, ट्राय पण केलं. पण त्यानंतर पण मला काही थोडस वाटलं की नाही होते म्हणून मी सरांना सांगितलं. ऍक्च्युली कम्युनिकेशन काहीच नव्हतं, कस्टमरशी काय बोलायचं, कसं बोलायचं काहीच माहिती नव्हतं. पण आता एवढं कम्युनिकेशन स्ट्रॉंग झालंय की कस्टमरशी भांडण असेल किंवा टीम सोबत भांडण असेल, म्हणजे आता जे पण आहे पेमेंट साठी असेल किंवा काय, टीम सोबत भांडण होतात तर नाही माझंच पेमेंट आहे, माझंच हे, म्हणजे हे पण असेल. कालचाच एक्सपिरियन्स ऍक्च्युली झालेलं. पण भांडण करून असे ना, नाही कस्टमर माझा आहे आणि मीच करणार आहे. म्हणून ही पण जर्नी म्हणजे इथून जे स्टार्ट झाली की कम्युनिकेशन काही नसताना इथपर्यंत आलेली, हे पण मला इथेच शिकायला भेटलं. एक्सेल काहीच येत नव्हतं, म्हणजे कृपा मॅमने शिकवलं. बाकी काही म्हणजे सगळ्या लीडर्स कडून किंवा माझे जे सिनियर असतील त्यांच्याकडून मी काय शिकले. जे पण येत नव्हतं ते इथेच माझं एन्हान्स झालं. त्यानंतर आता ठीक आहे, पण ते पण भांडण जरी असेल कस्टमर सोबत किंवा काय, किंवा टीम मध्ये जरी भांडण असेल, पण त्यात पण मजा आहे कारण किती पण झालं तरी एकच टीम आहे. आरती मॅम नेहमी म्हणतात एक टीम आहे म्हणून. थँक्यू सो मच इथे मला म्हणजे बोलण्याचं हे दिल्याबद्दल. थँक्यू. एवढे खूप जास्त भीती वाटते बोलायची, तरी पण सर्वांना थँक्यू. सरांनी जी अपॉर्च्युनिटी दिली मध्ये आम्हाला ग्रो करण्यासाठी एक प्लॅटफॉर्म दिलं, खूप काही शिकलो आम्ही. मध्ये माझ्या करिअरची सुरुवात झाली. हळूहळू गोष्टी शिकत गेलो, टेक्निकली स्ट्रॉंग होत गेलो, कस्टमर सोबत कम्युनिकेशन सगळ्या गोष्टी शिकत गेलो. आणि सर आता असं इतकं कॉन्फिडन्स आलाय, काही पण करू शकतो. कसाही कस्टमर असो त्याला हँडल करू शकतो. थँक्यू व्हेरी मच सर.
टीम लीडर बनवलं सर तुम्ही. अंडर एक टीम दिली. टीम पण एकदम छान छान वाटतंय. खूप त्यांच्याकडूनही आम्हाला खूप काही शिकायला मिळतंय. थँक्यू. गुड आफ्टरनून. तर मी माझ्या जर्नीपेक्षा वॉटबॉक्सची जर्नी सांगेन. कारण वॉटबॉक्सची जर्नी खूप अप्स अँड डाऊन्स मध्ये चालली. जेव्हा मी जॉईन झालेली तेव्हा मी आणि माझी दुसरी फ्रेंड होती भाग्येश. तेव्हा तिला डिजिटल डिपार्टमेंट दिला होता. त्याच्यानंतर मग मी हळूहळू करून टेक्निकल मध्ये गेली. तेव्हा पण दिवाळीच्या दरम्यान भरपूर जण टीम मध्ये आले, पण काही याच्यामुळे ते पण गेले. मग त्याच्यानंतर साक्षी आली. साक्षीने खूप हेल्प केली होती मला. ती आली तेव्हापासूनच कस्टमर्स हँडल्स करायला लागलो आम्ही. कृपा मॅम आणि अश्विनी मॅमनी पण खूप हेल्प केली आम्हाला. आणि टीम लीडर कसा बनायचा तर अश्विनी मॅम कडून मी जास्त शिकले. आणि आता माझ्याकडे प्रणाली आहे. तर आता हे की मागच्या वेळेपेक्षा जास्त बिझनेस होऊ शकतो आणि आम्ही करू. आणि थँक्यू सर ऑपॉर्च्युनिटी. मी मार्च 2025 ला जॉईन झाली होती. अगोदर सरांनी इंटरव्ह्यू घेतला होता. अश्विनी आहे वाटतं. आम्ही सोबतच म्हणजे अगोदर 3 फ्रेंड जॉईन झाले होते, नंतर मी 4थी. किती स्टार्टिंगला आम्ही 3 का 4च लोक होतो फक्त. त्याच्यानंतर एवढी लोक जरा भीती वाटायला. मी एक दिवस म्हणजे पहिला जॉईन केलं. काहीतरी 4 मार्च म्हणून डेट होती. एकच दिवस केलं, दुसऱ्या दिवशी गायब झाली होती मी. कस्टमरचे कॉल वगैरे सगळे ऐकून म्हणजे थोडं नको वाटलं मला. कारण की माझं बॅकग्राऊंडच ते नव्हतं ना. म्हणजे इथं काय कस्टमर कम्युनिकेशन हे ते सगळं मला समजवलं. म्हणजे बघ एकदा ट्राय कर कसं होतंय काय. तिथपर्यंत आता 1 इयर प्लस होऊन गेले. काहीतरी आहे म्हणूनच मी थांबले इथे. सर स्टार्टिंगला म्हणायचे जरा गावाला इज्जत ठेव, जरा किती बिझनेस 20-28 हजार फक्त स्टार्टिंगचा बिझनेस. ते आतापर्यंत आहे सर. पावर तर आहे सॉफ्टवेअर. थँक्यू. रेश्मा मॅम पण सारखे हे शिक तू ते शिक, ऑटोमेशन शिक, AI चॅटबॉट न्यू ट्रेनिंगला जे काय आहे ते शिक, आपल्या कस्टमर सोबत हे ट्रायल करू आहे. सपोर्टिव्ह सगळे आहेत. असं सपोर्ट दिला तर जाऊ पुढे. तर खरं सांगू तर प्रतीक्षाने मला रात्री सरप्राईज दिलं की तुला स्पीच करायचं आहे. पण आप सब तो मेरे को जानते ही. माझा इंटरव्ह्यू पासून तर सांगते की स्टार्टिंगला जेव्हा मी इंटरव्ह्यूला आले तेव्हा मी तर सरांशी डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट केला होता. तेव्हा टीम छोटी होती, एकच ऑफिस होतं आपलं. त्याच्यानंतर इंटरव्ह्यू झाला तेव्हा स्टार्टिंगला तर मी खूप नर्वस, भीती सगळं होतं. तेव्हा सरांनी थोडा विश्वास ठेवलेला माझ्यावर. नंतर माझे सिनियर्स आहेत, आरती मॅम आहेत, रेश्मा मॅम आहेत, मानसे मॅम आहेत, त्यांनी पण ट्रस्ट ठेवला. नंतर सारिका मॅम आहेत. सो त्यांनी आता पूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली आहे हँडल करायची अकाउंट्समध्ये. सोबत मॅनेजमेंटचंही असतं. मॅनेजमेंटमध्ये पण सरांनी खूप विश्वास ठेवून हे केलंय. सो अजून बोलायचं झालं तर आता नाही बोलू शकत. गुड आफ्टरनून. फर्स्ट तर तुम्हाला काही चेंजेस वगैरे जाणवतो का लास्ट मंथचा बिझनेस आणि ह्या मंथच्या बिझनेस मध्ये जाणवतो का? अरे सांगा ना, जाणवतो की नाही? ठीक आहे. म्हणजे मी माझी जर्नी म्हणजे सांगायच्या अगोदर मी हे सांगते की ह्या मंथ मध्ये प्रत्येकाने प्रत्येकाची ॲबिलिटी ओळखली. ठीक आहे, आपण हे करू शकतो. ठीक आहे, जे म्हणजे आपण कुठेतरी काय बोलतात ते स्वतःलाच ओळखत नव्हतो, ते ह्या इन्सेंटिव्ह असेल, टार्गेट असेल, त्याने आपल्याला हे करून दिलं की नाही बाबा आपल्यामध्ये ही ॲबिलिटी आहे, आपण ते करू शकतो.
ठीक आहे, आता सर्वांनी जर्नी सांगितली, मी माझी पण जर्नी स्टार्ट करते. मी 2022 ला जॉईन केलं होतं. आमचं ऑफिस जे होतं ना ते छोट्याशा गाळ्यामधून स्टार्ट झालेली आहे. मला खूप प्राऊड फील होतं की आता 8 ऑफिसेस आहेत. तेव्हा मी आलेली ना, म्हणजे आली तेव्हा सरांनीच इंटरव्ह्यू घेतला. इंटरव्ह्यू मध्ये मला तर पहिलं काही कळलंच नव्हतं. मला फक्त एक जॉब शोधायचं होतं, कारण की आफ्टर प्रेग्नेन्सी माझा 2 इयर्सचा जो पण बॅकअप होता. कारण की आता काय करणार, कुठेतरी जॉब बघावा लागणार, घरी बसून काय करणार आहे. त्याच्यामुळे मग मी आली. मग तेव्हा सर बोलले की असं फर्स्ट डेला तर मला काही समजलं नाही, म्हणजे मी पण ब्लँक होते, पण बोललं नाही. ठीक आहे. सो सगळ्यांना आधी कॉंग्रॅच्युलेशन, जो बिझनेस अचीव्ह केला त्याच्यासाठी. टार्गेट कुठल्या महिन्यात अचीव्ह करू. सो थँक्यू फर्स्ट सरांसाठी, जी मला माझ्यावर विश्वास ठेवला आणि ऑपॉर्च्युनिटी दिल्याबद्दल. सो जर्नी सांगायची गेली तर सगळ्यांची वेगवेगळी असते, पण अमोमध्ये जे जॉईन होतात त्यांची, आता जशी मी माझी जर्नी सगळ्यांना सांगेन तशा पद्धतीने सगळ्यांची जर्नी होईल. बिकॉज 50 ऑफिसेस करायचे, तर ह्या जर्नीनेच आपण पुढे जाऊया. ठीक आहे. सो मी स्टार्टिंगला मला इंटरव्ह्यूसाठी एप्रिलमध्येच कॉल आला होता, बट मी गावी होते त्याच्यामुळे मी जुलैमध्ये इंटरव्ह्यूसाठी गेले. फर्स्ट इंटरव्ह्यू माझा रेश्मा मॅडमने घेतला होता, मे बी सर होते तेव्हा. त्याच्यानंतर सेकंड डेला मला बोलवलं, मग सरांनी इंटरव्ह्यू घेतला. त्या टायमिंगला मे बी माझं बॅकग्राऊंड म्हणजे IT मध्ये माझं बॅकग्राऊंडच नव्हतं, पण माझी जॉईनिंग झाली होती. त्याच्यानंतर सरांनी मला चॅटबॉट बनवायला दिला होता. त्याच्यानंतर डायरेक्टली त्या अजयचा नंबर दिला आणि बोलले की त्याला कनेक्ट कर आणि तू चॅटबॉट बनव. ठीक आहे. मग त्याच्यानंतर मलाच प्रोडक्ट समजत नव्हतं की नेमकं काय आहे आणि काय करायचं, पण मी ते ट्राय करत होते. रेश्मा मॅम त्यांचं कॉर्डिनेट असायचं दोघांचं की पेमेंट आलं. म्हटलं कसलं पेमेंट येत असेल. मी म्हणायचे कसलं पेमेंट येते काय माहिती, लोक काय बोलतात. त्याच्यानंतर सर एक अर्धा तास कस्टमरशी बाहेर बोलायचे, तेव्हा आमचं आधी गायब ऑफिस होतं. मी म्हणायचे हा माणूस काय बोलत असेल कस्टमरशी अर्धा तास. कारण की मला प्रोडक्टच समजत नव्हतं, कारण डायरेक्टली स्टार्टिंगला चॅट बटन त्याच्यामध्येच वर्कआउट करत होते. त्याच्यानंतर सरांनी मला वॉर्डकॉपची जी रिन्युअल शीट ती दिली होती. त्याच्यानंतर मी कस्टमरशी कम्युनिकेशन करायचे. आणि जेव्हा स्टार्टिंगला सरांनी टार्गेट दिलं होतं, टार्गेटला कधीच कमी समजू नका, कारण की मी स्टार्टिंगला कमी समजलं होतं. 6 लाखाचा टार्गेट घेतला होता आणि मी बोलली 6 लाख तर पॅकेजेस असतात, त्यांनी मला 6 लाखच महिन्याला का दिले. Tuition friend, you can say like that. She gave me the reference of this. तुम्ही post केलं होतं Instagramला and we just randomly DM केलं होतं. I was actually working somewhere else and I saw her post and then I just randomly asked, I'm interested in this social media executive department, like role. So she said me to come for the interview and then I came here and there was miscommunication between me and HR. So next time the interview got scheduled and interview got scheduled with Amol sir and he guided me very well. Actually, he cleared my all the misunderstanding or the where I want to reach. So he gave me the right. According to him, he gave me the right role. But in this, the journey of mine is very difficult for me because every time I have to face all 60 of you. There are some different challenges I face. But thank you to all CEOs, Amol sir, and my management team. Special thanks to Mansi Wadekar and Mansi ma'am and all the CEOs and Amol sir. They always guided me. You can do it. Yes. The main thing they instructed me that your role is hand holding. जे की मी नाही आहे. मी एक रावडी मुलगी आहे जी बाहेर दिसेल तर ठोकेल अशा टाईपची मुलगी आहे. बट इकडे माझ्यामध्ये जे स्किल डेव्हलप झालं दॅट इज पेशन्स. आय स्टार्टेड टेकिंग थिंग्स व्हेरी पेशंटली, व्हेरी कामली. माय मेन थिंग इज लाईक previously I was in sales department only, but here my journey is very different and there are lots of things that I am learning. Special thanks to Mansi Wadekar also. I have seen her journey, like from
she will share her journey obviously, but आज मी आहे ती तिच्यामुळे पण आहे. आणि तिची मला एक क्वेश्चन होता की जी मुलगी माझ्यासोबत ट्युशनला होती आज ती एका ब्रँडची सीईओ आहे. आणि ड्युरिंग माय इंटरव्ह्यू ऑल्सो आय आस्क्ड क्वेश्चन रिअली मानसी वाडेकर सीईओ लाईक अमवा डिझाईन स्टुडिओची आहे. तिथं माझी क्लासमेट होती. लाईक शी इज ऑल्सो काइंड ऑफ इन्स्पिरेशन फॉर मी की जर ती जर त्या लेवलला पोहोचू शकते तर ऑब्व्हियसली आय कॅन ऑल्सो डू दॅट. सो तिची जर्नी, तिचा एक्सपिरियन्स ॲज अ फाउंडर ऑफ अमवा डिझाईन स्टुडिओ तिच्या तोंडूनच आपण ऐकूया. सो वेलकम मानसी वाडेकर मॅम. गुड आफ्टरनून. पहिले ते मी जर्नी सांगते, कारण अमवा डिझाईन स्टुडिओची जर्नी खरं तर आत्ता सुरू झाली, पण माझी जर्नी गेल्या 5 वर्षाची. 5 वर्ष कम्प्लीट होऊन 6व्या वर्षात पुढच्या महिन्यात मी जाते. आणि खरंच सांगते, मला कोणाला हे नाही करायचंय. मी माझ्या वयाच्या 19व्या वर्षी चालू केलं. अमोल सरांनी, मी अनलकी खूप आहे की अमोल सरांनी माझा इंटरव्ह्यू नाही घेतला, सगळ्यांचा इंटरव्ह्यू घेतला. मी खूप अनलकी आहे, कारण मी कायम अमोल सरांना आजही 5 वर्षानंतर बोलते, अमोल सर एकदा इंटरव्ह्यू घ्या, मी चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही मला. माझा इंटरव्ह्यू रेशमा मॅमने घेतला होता. रेशमाने विचारलं काय नाव, काय केले, जस्ट सिम्पल ग्राफिक डिझायनर म्हणून अमवा डिझाईन स्टुडिओला 26 सप्टेंबर 2022 साली जॉईनिंग केलं होतं. त्यानंतर आपला एक प्रोजेक्ट होता ब्रँड बॉस म्हणून, त्याच्यावरती काम करत होते. तेव्हा इतकंच होतं, डिझाईन बनवायचं, ऑफिसला यायचं, जेवायचं, घरी जायचं. पण त्या डिझाईन पण अमोल सरांच्या आवडीच्या नसायच्या. खरं तर मी ना डिझाईनचा कोर्स केला 2 महिने, पण खरी डिझायनिंग स्किल मी अमोल सरांकडून शिकली. खरंच आजही मी कालचाच दिवस सांगते, कालच अमोल सरांनी मला, मी एक डिझाईन बनवत होती आजच्या प्रोग्रामची, अमोल सरांनी मला 15 वेळा डिझाईन बनवून घेतलेली आहे. खूप म्हणजे आज मी माझी जर्नी डिझायनर म्हणूनच चालू केली होती. आणि डिझाईन स्किल्स आपल्याला कुठेच कोणत्या क्लासेसमध्ये, कॉलेजमध्ये नाही भेटत. मला तरी हेच जाणवलं. काय अमोल सर बोलतात की क्लासेसमध्ये वगैरे सॉफ्टवेअर शिकवले जातात, पण खरी कामाची जर्नी आपण जे करतो त्याच्यातून घडून येते. डिझाईन मधला फक्त मला डी पण येत नव्हता. मी जॉईन झाली अमो कॉर्पोरेशन मध्ये, तेव्हा मी अक्षरशः रडायची. 1.5 महिन्यानंतर एक जॉईन झाली टीम मध्ये, रम्या म्हणून. अमोल सरांना तिचं काम खूप आवडायला लागलं होतं. मी रेशमा मॅम गेली, रेशमा मॅम मला रिझाईन करायचंय, मला नाही करायचं इथे काम. मी ऑफिसमध्ये 2 दिवस सोडून मी 2 दिवस आली नाही. अमोल सरांना मेल केला होता, मी आजारी आहे. रेशमा मॅमने सांगितलंय माझे प्रॉब्लेम चालू आहेत, मी नाही येणार आहे ऑफिसला. अमोल सर तिसऱ्या दिवशी बोलतात, तू त्या दिवशी रेशमा मॅम बरोबर बोलली आणि मुद्दाम सुट्टी काढली ना. माझं त्यांनी बरोबर ओळखलं होतं. पण खरंच मी ना, मला सरांना काम आवडत नव्हतं, माझे डिझाईन आवडत नव्हतं आणि मला राग येत होता. माझा स्वभाव असा की मी एखाद्याला आवडत नाही ना, नाही मी करणारच नाही. पण आज ते त्यांना आवडतं तर मी करते. हा, तरी पण थोडाफार स्वभाव राहिलाय, पण अमोल सरांमुळे मी करते. मी इतकंच सांगेल की अमोल कॉर्पोरेशनची माझी जर्नी हार्डली 6 ते 7 महिन्यांचीच होती ॲज अ एम्प्लॉय म्हणून. आज इथे सीईओ को फाउंडर म्हणून उभी आहे, पण तुमच्यासारखीच त्यावेळेस एक एम्प्लॉय म्हणून जॉईन केली होती. 7 महिन्याची जर्नी केली. त्यानंतर पूर्ण करिअर गॅप 1.5 ते 2 वर्षाचा माझा करिअर गॅप झाला. त्यामध्ये सगळेजण म्हणजे अक्षरशः माझ्या घरचे बोलत होते की नाही करायचंय. अमोल सरांनी रोज मी मला अमोल सर घरचे असे बोलतात की नाही करायचं, अमोल सर बोलायचं नाही करायचंय, तू करणार. आज हा 2 वर्षाचा गॅप आहे, काही असेल 4 महिने 5 महिने, पण स्वप्न आहे ना ते करायचंय. आणि मी खरंच सांगते, माझं असं काहीच मोठं स्वप्न नव्हतं की कंपनी बिल्ड करायची, सीईओ बनायचं, नाही. माझं एकच स्वप्न होतं की स्वतःची ओळख पाहिजे. अमोल सरांनी हाच प्रश्न विचारला होता, भले इंटरव्ह्यू नाही घेतला, पण एक प्रश्न खूप छान त्यांनी विचारला की वाडेकर तुला काय पाहिजे तुझ्या आयुष्यात. मी सांगितलं की मला माझी ओळख निर्माण होती. अरे मला माहितीच नाही, पण ओळख कशी निर्माण करायची, ओळख निर्माण करायची ठीक आहे, बिझनेस, लर्निंग, ग्रोईंग, लिडरशिप काही माहित नव्हतं, टीम लिडर काहीच माहित नव्हतं. त्यावेळेस अमोल सरांनी चालू केलं. हळूहळू त्या 7 महिन्यात सरांच्या म्हणण्याप्रमाणे थोडीफार डिझायनर त्यांना आवडेल अशी डिझाईन बनवू लागली होती. नंतर पूर्ण पद्धतीने गॅप झाला. पण अमोल सरांनी ज्या गॅप मध्ये पण ना, मी नव्हती ऑफिसमध्ये, नव्हती मी कशीच नव्हती, फक्त अमोल सरांशी कनेक्टेड होती. अमोल सर करायचे की माझ्या घरचे खूपच नाही बोलत होते, माझ्या घरचे की नाहीच करायचं इथे कंटिन्यू म्हणून. परत मला खूप हे होतं, पण अमोल सरांनी ते तेव्हा सोडलं नाही. जर कोणी दुसरे असतं ना, मी खरंच सांगते, मी अमोल सरांना सर म्हणून कधीच बघितलं नाही. आजही मी त्यांना गुरु म्हणूनच बघते की बरोबर आहे.
मी एका योग्य व्यक्तीच्या हातात आहे आणि हेच आहेत जे दोरी सोडणार आहे. अक्षरशः आज पण माझ्या घरच्या अमोल सरांना बोलतात, मानसी तुमच्याकडे तुमच्या हातात तिची दोरी आहे, काय करायचं ते करा, आणि ते तसेच शिकवतात मला. बऱ्याच वेळा खूप काय होतं त्याच्यासाठी सॉरी, तुम्हाला माहिती आहे, तुम्ही समजून घेता, कोणच समजून घेत मम्मी पप्पा पण नाही समजून घेत. आता अमुआ डिझाईन स्टुडिओ असं काही खरंच नव्हतं आपल्या अमुआ कॉर्पोरेशन मध्ये. 15 ऑगस्ट 2023 साली डिझाईन स्टुडिओ हा वर्ड माझ्या डोक्यात होता. मी अमोल सरांना जस्ट एकदा बोलून दाखवलं, डिझाईन स्टुडिओ असं काहीतरी करूयात. अमोल सर म्हणले हे काय ब्रँड आहे? अरे म्हणलं मला नाही माहिती पण काय असतं, पण मला करायचंय. कारण माझं जो मी बॅकग्राऊंड आली होती अमोल कॉर्पोरेशन मध्ये जॉईन करायच्या अगोदर मी प्रिंटिंग प्रेस मध्ये काम करत होते, डिझायनर म्हणून. फ्लेक्स बनवा, हे बनवा, ते बनवा. पण नाही, इथे आल्यावर काय आलं की डिझायनरची योग्य किंमत काय आणि माझे स्किल्स काय असतील. त्या स्किल्सला जर पॉलिश कोणी केलं असेल ना आतापर्यंत 6 वर्षाच्या जर्नी, तर अमोल सरच असतो. माझ्या पूर्ण करिअरचं किंवा रिअल लाईफचं पण जर मी कोणाला क्रेडिट देईन ना, फक्त आणि फक्त अमोल सर. हा, स्वतःवरती विश्वास एवढा नव्हता, काहीच नव्हता. अमोल सरांनी विश्वास ठेवायचा म्हणजे ठेवायचाच. अजिबात स्वतःवरचा विश्वास कधी नाही कमी करायचा. समोरच्यावरचा केलास ना तरी चालेल, पण स्वतःवरचा विश्वास नाही डाऊन करायचा. त्याच्यानंतर आपण 15 ऑगस्ट 2023 ला डिझाईन स्टुडिओ सांगितलं. सर बोलले अमुआ लाव, मग अमुआ डिझाईन. तेव्हापासून अमुआ डिझाईन स्टुडिओ खरं तर आहे, पण त्यावेळेस आपल्याकडे टीम नव्हती, काय नव्हती, फक्त मानसी एकटी होती आणि अमोल सर सोबतीला होते. त्यावेळेस अरे अमुआ डिझाईन स्टुडिओ चालू तर केलं, पण त्याच्यामध्ये असणार काय, फक्त डिझाईन साठी थोडी कोणी एवढं हे करतं. मग त्यावेळेस ना मला ब्रँडिंग माहित होतं, ना ऍडव्हर्टायझिंग माहित होतं, ना मार्केटिंग माहित होतं. मी त्यावेळेस सोशल मीडिया काहीच नाही, फक्त इंस्टाग्राम माहित होतं, कारण मी स्वतः युज करत होते. आणि फ्रीलान्सिंगचं माझं पेज होतं, त्याच्यामुळे मला इंस्टाग्राम माहित होतं, कारण मी बऱ्याचशा ऑर्डर मी इंस्टाग्राम वरून घेतलेल्या होत्या. त्याच्यानंतर ते झालं, हळूहळू शिकत जो 1.5 वर्षाचा गॅप होता त्याच्यामध्ये समजलं की ब्रँडिंग काय असते. पूर्ण पद्धतीने नाही समजलं, पण रिसर्च मध्ये समजत गेलं. त्याच्यानंतर परत कंपनीमध्ये जॉईन केलं वाशी ऑफिसला, पण त्यानंतर काही प्रॉब्लेम्समुळे हार्डली 2च महिने मी तिथे राहिली. नंतर आपलं ऑफिस उलव्याला आलं, तिथून खरी तर जर्नी सुरू झाली. अमोल सर एका ऑफिसला, मी वर्क फ्रॉम होम. मला काहीच समजत नव्हतं. चॅट जीपीटी नवीन मार्केटमध्ये आलं होतं ते. मी अमोल सरांना रडायचे, मला चॅट जीपीटी शिकवा. अमोल सर, एक रक्षिता म्हणून होती, तिला सांगायचे शिकवा म्हणून, पण सगळे वर्क फ्रॉम होमला होते. त्याच्यानंतर सगळं हे झालं. मग हळूहळू पुन्हा अमोल सर जेव्हा आपलं सेक्टर 5ला छोटं ऑफिस घेतलं होतं आपण गावातलं, तिथे मग अमोल सरांना कधीतरी एकदा फोन करून किंवा गुगल मीटला कनेक्ट करून चॅट जीपीटी त्यांनी थोडंफार हे केलं. तेव्हा नंतर ती जर्नी सुरू झाली. सागर ज्वेलर्सचा फोन अमोल सरांना आला होता की मला पुन्हा कनेक्ट करायचंय. खरं जर मी शिकली असेल ना काय म्हणजे ब्रँडिंग, ऍडव्हर्टायझिंग, मार्केटिंग, ते सागर ज्वेलर्सचं काम करण्यामध्ये. कारण तिथे जेव्हा मी काम करत होते ना, तेव्हा अमोल सर सांगायचे त्याला मेटा ऍड्स दे, त्याला हे दे, त्याला ते दे, त्याच्यासाठी असं गोल कर, तसं कर. खरंच सागर ज्वेलर्स हा एक माझा असं क्लायंट आहे ना, खूप काही शिकवलं मला त्या क्लायंटने. मेटा ऍड्स मला माहित नव्हतं, अमोल सर कायम पुश करायचे मेटा ऍड्स आणि मेटा ऍड्सचं महत्वही मला माहित नव्हतं. पण आज आता ह्या स्टेजला आलं ना की मेटा ऍड्स इट्स किंग. माझं तरी अमुआ डिझाईन स्टुडिओला विजन ठेवून, सॉरी वाईट वाटून घेऊ नका, अमुआ कॉर्पोरेशनचे जसे डिपार्टमेंट आहे, मला माझ्या डिझाईन स्टुडिओची हवे. मला उद्या उठून इथे माझा सुद्धा अमुआ डिझाईन स्टुडिओचा ब्रँड लोगो हवाय. नक्की. ऑल ऑफ यू, माझी सपोर्ट टीम, माझी टीम. एका महिन्यापूर्वी खूप हे झालं होतं, आज सक्सेसफुली नेहरूला ऑफिस झालेलं आहे. नेहरू ऑफिस मध्ये अमोल सर आणि टीम जास्त होती माझ्या बरोबर. आमच्या टीम मध्ये सगळ्यात मोठी सुप्रिया मॅम आहे. सुप्रिया मॅमने खरंच जास्त सपोर्ट केलाय. मी आज माझ्या टीम मध्ये मी बारीक आहे वयाने, भले त्यांची टीएल असेल, वॉट एव्हर सिनियर असेल, पण ना ते एक मॅच्युरिटी बोलतात ना, सुप्रिया मॅमने खूप सपोर्ट केला. गेल्या 1 महिन्यात जो मला सुप्रिया मॅमने सपोर्ट केलाय ना, तो कुणीच नाही केला. सुप्रिया मॅम, प्रगती, हर्षदा, अमोल सरही होते, मी नाही म्हणत नाही, पण खरंच माझी टीम पण तितकीच आज आहे. आणि अमोल सर, टीम, सपोर्ट टीमला खूप थँक्यू, कारण 1 वर्षावर सपोर्ट टीम बरोबर काढलेले मी. थँक्यू सो मच. नमस्कार, माझं नाव सुशांत. मी सध्या रिसेंटली जॉईन केलेलं आहे, म्हणजे ठीक आहे, आता 1 महिन्यापर्यंत होईल. काय नाही, चांगलं वाटतंय मस्तपैकी. काय आम्हामध्ये जॉईन झालो, पण पहिली गोष्ट तर मला जे माहित नव्हतं, मी सारखं आरती मॅडमला विचारायचं की जॉईन होताना मला अमुआ सांगितलं, पण नंतर तिथे बाबा फॉल बॉक्स, डिजिटरी, नेमकं मी कुठे ते सांगा म्हणायचं. ते म्हणायचे तू सगळीकडे तू जा.
ठीक आहे चाललंय चांगलं चाललंय भेटेल क्लायंट एकच क्लायंट झाला मला वाटलं मोठा बाण मारला पण आला फिरून आता काय ठीक आहे भाऊ अजून चांगलं करू आहेत टीम आहेत वगैरे दीपाली मॅडम आहेत त्यांच्या अंडर करतोय तसे मॅडम त्याच्यावरती सर आहेतच करू आपण सगळं ठीक फर्स्ट तो मैं सबको तो थैंक यू बोलना चाहूँगा कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पर खड़े होने की, प्लस जो भी मैडम ने कहा बोर्ड पे मेरा अचीवमेंट हुआ। जैसे कि मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम सचिन है। मैं पहले बिजनेस करता था सेफ्टी गियर्स का, मर्चेंट नेवी में मैं सप्लाई करता था। वो बिजनेस तो मैंने किया था, बट मुझे जो यहाँ पे आने के बाद में, वहाँ पे तो मैंने बिजनेस किया था, बट मुझे मतलब मैं नॉर्मली सब कुछ हैंडल करता था, बट बिजनेस कैसे किया जाता है वो मैं यहाँ पे आने के बाद में सीखा हूँ। जैसे सर है, सर के साथ में सर के साथ में मेरा इंटरव्यू हुआ। मैं सर्च कर रहा था जॉब अपना पे, मुझे दिखा कि पास में ही जॉब एक अमोआ कॉर्पोरेशन करके है, तो मैंने थोड़ा सा रिव्यू वगैरह किया था कि क्या होता है कैसे होता है। बट जब मैं आया इंटरव्यू के लिए तब सर के साथ में मेरा इंटरव्यू हुआ और ऑलमोस्ट 45 मिनट्स सर के साथ में मेरा जो भी डिस्कशन हुआ, उसके बाद में मुझे एक लगा कि मैं यहाँ पर कुछ जो मुझसे छूट गया है, जो मैं करना चाहता था बिजनेस में, वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो इस वजह से मैंने सेकेंड डे ही मैडम से कोऑर्डिनेशन करके ज्वाइन कर लिया और जो भी मुझसे छूटा बिजनेस में मैं वो यहाँ पर आके वो अचीव करना चाहता हूँ। और जो रही बात 4 डे के, तो वो तो एक्चुअली मुझे प्रोडक्ट समझा नहीं था, बट अभी धीरे धीरे प्रोडक्ट का भी नॉलेज मुझे आ गया है। And before being started, I would like to show my express gratitude toward my trainee Pratiksha and sir, who had been always supporting. And it's been 1 month of my internship here at Amoa Corporation, and in the starting I was mainly working on content creation part. Starting में तो I used to think कि क्या बनाना है कैसे बनाएंगे, but through learning I understood कि content is not just creating but also thinking about कि हम जो बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं। So वो जो shift था एक mindset में, वो एक बहुत important चीज़ थी जो मैंने content creation के दौरान सीखी। My journey with Amoa is a bit of up and downs. It was not a smooth task. Like first time when I got interviewed by sir, so like sir asked me like, what do you want to do like with this job? Like, what are your ambitions? So like I told that I don't want a temporary job, a permanent job. But my only consistency, I have almost changed the departments like anything. The consistency was not at all there, and but then sir, every time I used to rejoin the job, sir used to give me an opportunity and he used to tell me not to give up. You can try your best, because when my clients were not being made, I used to self-doubt myself. Like sir said, you shouldn't have doubt about yourself. I used to self-doubt, and then it used to become difficult. But sir used to encourage and motivate me so much that I literally said that no, one day I will do it, and I will do it for many years, and I will show it. And I cannot thank enough Aarti ma'am, who was also a support system. Like she also should be behind me, like saying that you can do it. Reshma ma'am, I've changed so many different departments. So they all gave me a chance to improve, and they said don't give up and you can do it. So thank you to all of them. Hi everyone. Actually, I am feeling nervous now because I just had word with Aarti and Reshma ma'am. They were like कि first half में जो अपना speeches हुए, they were really well organized, well decorated या फिर well framed kind of speeches थे. So really thank you all कि आपने थोड़ा सा एक initiative अपना खुद का कुछ शेयरिंग किए, आपके खुद के एक्सपीरियंसेस शेयर किए, खुद का लाइफ जर्नी थोड़ा सा शेयर किया। नो डाउट बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीज़ें प्लान थी, बट जब यहाँ पे आके प्लेटफॉर्म पे बोलना होता है ना, दैट इज़ द मेन थिंग।
राइट? आपने खुद ने भी वो ऑब्जर्व किया होगा कि हम लोग जगह पे बैठ के तो बहुत कुछ बोल लेते हैं, यहाँ पे आके बोलना सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट? ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको अमवा कॉर्पोरेशन दे रहा है कि जहाँ पर अपने जो फियर फैक्टर होता है ना, यार हाउ टू लीड, मैं सामने वाले को कैसे एड्रेस करूँ, कैसे स्टेज फियर को हटाऊं। क्योंकि देखो स्कूल डेज में हमें सिखाया जाता था कि यार स्टेज फियर को कैसे हटाना है, आप पार्टिसिपेट करो, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो, चैट शोज होते हैं या चैट डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं स्कूल्स कॉलेजेस में, आपके कुछ इवेंट्स होते हैं। आप अगर MBA वाले जो लोग हैं उन्होंने देखा होगा कि मल्लार वगैरह जैसे कुछ बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, हायर कॉलेज इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपने खुद के स्किल्स को ब्रश अप करने का, राइट? बट व्हेन इट कम्स टू द ओनली ग्रेजुएट पीपल, वहाँ पे कहीं पे हम लोग लैक कर लेते हैं। क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, आप अगर देखोगे तो वहाँ पर कहीं पर भी आपको ये नहीं दिखेगा कि कहीं पे लीडरशिप क्वालिटी बाहर आने के लिए कुछ फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। ओनली पासिंग मार्क्स, रिजल्ट्स, टॉप कौन आएगा, बस इसमें मतलब कॉम्पिटिशन बना के रखा हुआ है। बट व्हेन इट कम्स टू अपना खुद का जो क्वालिटी डेवलपमेंट होता है ना, एक एज अ ह्यूमन बीइंग या एज अ बिजनेस ओरिएंटेड पीपल, वो कहीं पे भी नहीं है। जो कि प्लेटफॉर्म मैंने ऑलमोस्ट जैसे मैंने को लास्ट टाइम भी बोला होगा, बहुत सारे लोगों से मैंने बात करते थे, ये चीज़ मैंने हाईलाइट भी की है कि आई वॉज वर्किंग इन कॉर्पोरेट फॉर ऑलमोस्ट 14 years, राइट? व्हेन आई स्टार्टेड माई जर्नी, सेम आप अपना जैसे अमवा कॉर्पोरेशन ना, मुझे कभी भी ऐसा फील आता है कि मेरा ज्वाइनिंग विद अमवा कॉर्पोरेशन इज एज फर्स्ट स्टार्टेड विद द लीगल कंसल्टेंट, राइट? एक लीगल मैटर था, उसमें मैं कंसल्ट करने के लिए आया था। देन द थिंग स्टार्टेड विद HR, एडमिन, ऑपरेशंस वगैरह का पार्ट। बट व्हेन आई मेट विद ऑल द सीनियर्स, या फिर अपना जो फर्स्ट इंटरेक्शन मीटिंग हुआ था, शायद मंथली या वीकली मीटिंग में हम लोग बात किए थे, दैट टाइम आई स्टार्टेड फीलिंग कि अरे मुझे लगता है मैं मेरी जो ओरिजिनल कंपनी थी ना, वहाँ पे मेरा ओरिजिनल डेज वापस आया। वाई आई फेल्ट दैट इन दैट वे, क्योंकि जब हम ज्वाइन किए थे ना, we were my joining number or say employee code was 31. We started our journey in Dadar, जो प्रभावी के अपोजिट साइड में, वहाँ पर ऑलमोस्ट 2 फ्लोर का था। HR से डरते थे, HR जैसे बैग उठा के जाता था, हम लोग अपनी बैग लेके भागते थे। मतलब वो स्कूल डेज या फिर जो स्टार्टअप वाला जर्नी है ना, वो यहाँ पे भी थोड़ा सा इमेच्योरिटी जो बोलते हैं ना, वो मुझे यहाँ पे लगी स्टार्टिंग में, विच इज एक्चुअली प्योर फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग, इमेच्योरिटी। मैच्योरिटी आ गया, उसके बाद में हर चीज प्रोफेशनल बन जाती है।
ढोलीडा ढोल रे वगाड़ मारे हीट लहर से ढोल रे वगाड़ मारे हीट लहर से ए हीट लहर से मारे टीम डिपार्टमेंट हेडचा इंडिव्हिज्युअल बिझनेस, त्यांचा टीमचा बिझनेस, त्यांच्या टीमचं टीम वर्क, ह्या सगळ्या गोष्टी अनालाइज करून आपण बिझनेस आयकॉन ऑफ द मंथ या मंथमध्ये अनाऊन्स करतोय. सो लेट्स सी द नॉमिनीज. रेश्मा मॅम, आय वुड लाईक टू कॉल अमोल सर, अमोल कांबळे सर, टू प्रेझेंट द अवॉर्ड फॉर द बिझनेस आयकॉन. तुमची टीम तुमचा सर्टिफिकेट घेत आहे. थांबायचं नाही गड्या, थांबायचं नाही, घाबरायचं नाही, आता घाबरायचं नाही. थैंक यू एवरीवन. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैनेजमेंट टीम, जो इवेंट जो है वो बहुत ही बढ़िया एंड आई थिंक बहुत वी आर है ना, इमेजिनेशन जो होता है उसका थोड़ा बहुत तो हम लोग कर रहे हैं. और जिस तरह से इवेंट को ऑर्गेनाइज किया विद इन बहुत शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड था, उसमें भी टीम और सब लोग मिलकर जो ये मैनेजमेंट जो किया है उसका बहुत ही एक सेकेंड जो हमारी टीम है जिन्होंने ये मंथ में इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है. और परफॉर्मेंस इन द सेंस एवरीवन हैव गिवन देयर, है ना, कि लास्ट खून होता है वो भी अपना पूरा जी जान लगा के किए और शायद इसीलिए उनकी मेहनत का जो नतीजा है वो अभी सबको दिखाई दे रहा है. सो कॉन्ग्रेचुलेशन ईच एंड एवरीवन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतने सारे रीजंस हैं, इतना सारा सेलिब्रेशन है, इतने सारे अवार्ड्स है, इसके पीछे का बस एक ही रीजन है, वो है एप्रिसिएशन. क्योंकि जब तक हम किसी अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते हम आगे बढ़ ही नहीं सकते. और दैट्स व्हाई वी हैव यू नो ईच एंड एवरी मंथ वी हैव दिस अवार्ड सेरेमनी. और अवार्ड इन द सेंस क्या है, जब तक हम अपने आप को सही, अपने आप को बेहतर नहीं बताएंगे तो अपने अंदर से कोई बेहतर आएगा ही नहीं. सो दैट्स व्हाई ईच एंड एवरी पर्सन, दोज हु गॉट द अवार्ड, दोज हु हैव नॉमिनेट, और सबको ये एड्रेस करने के लिए आप लोगों को ये जस्ट एग्जाम्पल है. दिस इज जस्ट एग्जाम्पल. और ये एग्जाम्पल सेट से आपने देखा होगा कि एक वाइब अच्छी मिलती है, एक भीतर अपने आप को देखने की जो विजन है वो थोड़ा सा चेंज होता है, गोल चेंज होता है, सारा चीज एक सही वे में लगता है. बिकॉज एवरीवन हैविंग देयर यू नो ओन प्रॉब्लम्स, वो अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स के साथ जी रहा है, बहुत सारी चीजें हैं. लेकिन जब मुझे लगता है कि जब अमुआ के साथ में जुड़ जाते हैं तो मुझे लगता है कि किस तरह से मैं इन लोगों को एक विजन पे रखूं, एक गोल पे रखूं, और किस तरह से मैं सबको एक साथ में लेकर चलूं. सो होप वी आर मूविंग, है ना, कि जस्ट जर्नी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. जो इवेंट्स है, इस इवेंट्स के थ्रू है, अवार्ड्स है, अवार्ड्स के थ्रू. अब आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि आपको अवार्ड्स लेकर या फिर ये जो आइडियाज है कि कैसे लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है आप लोगों को? फील गुड? ओके. तो पहले तो जिन्होंने ये अवार्ड रिकमेंड और ये किया है, जो हमारी मैनेजमेंट टीम है, उनके लिए थोड़ा सा क्लैप करते हैं, बिकॉज दे हैव गिवन दिस यू वर्क हार्ड. और मानसी मैम है, पायल मैम है, अमोल सर है, प्रतीक्षा है ना, बैकेंड में वाडेकर मैडम है, प्रणाली मैडम है, परी मैम है. दे आर वर्किंग. और ये ऐसे फील होता है कि जैसे कि पता नहीं कि 5 साल से तो जानते हैं सर,
अमुआ को तो 5 साल से जानते हैं हम लोग, है ना? तो ऐसे फीलिंग से वर्कआउट कर रहे हैं, दे आर नॉट, मतलब ये सारी चीजें हैं। और टीम के पास में तो आऊंगा, बट पहले इवेंट की जो बात है पहले उसको ये कर लेते हैं। अभी अवार्ड्स में और अचीवमेंट्स, ये तो जब हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं उसमें सारा चीज पता चल रहा है। एक माइलस्टोन हम लोग हर महीने में रीच आउट कर रहे हैं, और यही माइलस्टोन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। दैट माइलस्टोन दैट अमुआ कॉर्पोरेशंस विद इन जितने एसोसिएशन ब्रांड्स हैं, उस एसोसिएशन ब्रांड्स ने दिस मंथ वी हैव अचीव 50 lakh, and this achievement goes to all of you. अभी मुझे पता है कृपा मैम है, भारती मैम है, रेशमा मैडम है, मानसी मैडम है, मेरे ख्याल से अश्विनी मैडम कहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है मुझे, तो अश्विनी मैडम है, सारिका मैम है, तो ईच एंड एवरी वन है ना यहाँ पे जो है वो हम लोग ने देखा है ना? ऋतुजा है ना? अभी जितने भी है लोग उनको ये स्टोरी पता है जो मैं अभी स्टोरी बोल रहा हूँ। एंड दिस स्टोरी इज नॉट कि बनाई हुई स्टोरी नहीं है, दैट रियली वी हैव डन इट। और पहले मंथ में ₹1,00,000 का, आप सोचो ₹1,00,000 का हमारा टारगेट होता था, और उसके लिए भी इतना सारा मतलब कस्टमर को प्रेशर सब कुछ ये करने का, लेकिन एक बिलीव सिस्टम था। और हर टीम उस टाइम पे मुझसे 10 लाख का टारगेट लेते थे। कितना लेते थे? 10 लाख का टारगेट लेते थे, 1 लाख का अचीवमेंट होता था। एंड मैं फिर भी नेक्स्ट मंथ में उनको वही डबल टारगेट देता था। द रीजन उसके पीछे, ताकि उनको भी पता चले कि 50,000 या 50 लाख रीच आउट करने के लिए हमें और कितनी स्ट्रेंथ लगेगी। जैसे अमोल सर ने वो पॉइंट सही से पॉइंट किया कि टारगेट माइलस्टोन जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं। इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट इट, तो एटलीस्ट पता चलता है कि हाँ यार 10 लाख करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो ये टीम लगेगी, ये टीम लगेगी, ये स्ट्रेंथ लगेगी, ये स्किल लगेगी, ये यहाँ पे लैकिंग हो रहा है, वीकनेस, ये सारा चीज हमें पता चलता है। और फिर नेक्स्ट मंथ में हम उसी स्ट्रेंथ को, उसी वीकनेस को, उसी अपॉर्चुनिटी को, उसी थ्रेट को समझकर फिर हम लोग उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं। तो हमेशा मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि SWOT एनालिसिस है ना, कि SWOT बहुत जरूरी होता है। और ये SWOT ये आपके लाइफ में पैसा कमाना है। अपने लाइफ में अगर कहीं पे भी आप चाहते हो कि एक सही लाइफ हो, तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन पैसा ऐसे ही नहीं आता है, बिना प्लानिंग के नहीं आता है। पैसा बिना आप सोचोगे कि मैं स्किल नहीं रखूंगा, बस 10 अलग अलग स्किल कर दूंगा तो पैसे बनेगा, नहीं होगा ऐसा। आपको एक स्किल को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, शायद डट के रहना पड़ेगा आप लोगों को, आपको कंसिस्टेंटली उसी चीज के ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा, तब जाके आप हर कोई, मेरा अचीवमेंट या फिर ये कोई मेरा नहीं है, ये सब आप लोगों का है। बट मुझे लगता है कि दिस इज जस्ट बिगिनिंग फॉर ईच एंड एवरीवन। यहाँ पे हर एक प्लेयर जो है, उस प्लेयर को एक मोटिवेशन में देना चाहता हूँ कि ये जस्ट शुरुआत है। इन अपकमिंग मंथ्स में जो फेस्टिव सीजन आने वाला है, इस फेस्टिव सीजन में हमारे पास में कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, कितना सारा चीज है जो हम लोग कर सकते हैं अपने आप को। क्योंकि जब आप अपने आप को नहीं दोगे, जस्ट लुकिंग, हाँ ठीक है सर बोल रहे हैं या फिर टीम बोल रही है, इसके लिए नहीं, खुद के लिए। क्योंकि खुद का इम्प्रूवमेंट या फिर खुद की पहचान होना बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल से मेरे जो टीम लीडर्स है, मेरे जो नए आने वाले सारे प्लेयर्स है, और जितनी भी मेरी टीम्स हैं, वो सारी टीम्स में मुझे एक अच्छी चीज दिखाई देती है कि दे आर टूवर्ड्स, है ना, कि मतलब अपने को पता नहीं बट हाँ कुछ करना है, ऐसे है। तो मुझे लगता है कि वी विल अचीव दिस, और भी अपॉर्चुनिटीज आ जाएगी। बट इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो होती है सही से प्लानिंग। तो अभी हम लोग ने 50 लाख का जो मार्क क्रॉस किया है,
मैं चाहता हूँ ये अपकमिंग मंथ्स में ये 5 CR के अराउंड हो, क्योंकि दिस वी कैन अचीव। मेरे ख्याल से है ना, आरती मैम है, रेशमा मैम है, दे हैव सीन द थिंग्स कि 1 लाख के लिए हमें क्या स्ट्रगल करना पड़ता था एंड कैसे ये 50 lakhs हो गया पता भी नहीं चला। एंड दिस इज ऑल थिंग्स, मतलब ये कोई एक पर्सन से होगा ऐसा नहीं है। तो माय है ना कि मेरा एक ही कहना है आप लोगों को कि पहले खुद के ऊपर बिलीव रखो। हर एक डिपार्टमेंट का, उस डिपार्टमेंट का एक एक प्लेयर वो खुद को पहचानना बहुत जरूरी है, खुद के ऊपर बिलीव रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि दुनिया के बारे में छोड़ो, पहले खुद के बारे में सोचो, खुद के ऊपर ज्यादा यकीन रखो। जब आप खुद के ऊपर यकीन रखोगे तो बहुत दुनिया मतलब इजी होगी आपके लिए। सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, खुद के ऊपर डाउट करते हो कि मुझसे होगा नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, अरे नहीं मेरा तो बैकग्राउंड नहीं है, अरे मैं तो ये कभी देखा नहीं है, ये ऐसी सारी चीजें हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी हमारे फीमेल या फिर है ना कि उनके लिए मैं एक बताना चाहता हूँ कि उन्होंने भी कभी अपनी जिंदगी में ना रोटी बनाना सीखते नहीं उन लोग, बट जब उनके सामने मिलता है तब उन लोग बनाते हैं, है ना। सो स्टोरी बिहाइंड क्या है कि जब आपको सामने आप उसको फेस करोगे तो आप उसको कर सकते हो, एंड दिस इज द रियलिटी। मतलब आप रोटी बनाने के लिए सीख सकते हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई स्किल डिफिकल्ट है, बट आपको बिलीव रखना पड़ता है, पसंद आना पड़ता है कि हाँ ठीक है मैं कर सकती हूँ, खुद के ऊपर बिलीव रखना पड़ता है। जब आप वो खुद के ऊपर बिलीव रखोगे तभी आप अपनी मंजिल तक रीच आउट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि हर एक जितने भी टीम मेंबर्स है, टीम प्लेयर्स है, जिन्होंने ये मंथ में अचीव किया है, उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनके लिए जिन्होंने पूरा अपना एफर्ट्स डाला है, आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल्स, मतलब ये मंथ में जो मैंने देखा है, मतलब हर एक प्लेयर के आंखों में, फिर वो प्रतीक्षा हो, मानसी हो, दीपाली हो, कृपा हो, मतलब हर प्लेयर, मतलब एक प्लेयर का नाम नहीं बट हर प्लेयर, मतलब छोटा, मतलब तन्वी हो, प्रांजल हो, या ये लोग, मतलब इवन हर एक प्लेयर जो है, नए प्लेयर भी हो, पुराने प्लेयर भी हो, कोई भी हो, लेकिन इन लोग के अंदर में ये मंथ में जो देखा है अद्भुत नजारा। मतलब 7 बजे 8 बजे वो खुद बैठे हैं, खुद वर्कआउट कर रहे, क्लाइंट्स कॉल कर रहे, या फिर मेरे ख्याल से ज्योति थी, एक बार मैं था शायद 8 बजे तक जब नीचे आया था तभी, तो ज्योति थी, मतलब इन लोग 8 बजे तक उन लोग सिर्फ अपने मिशन को देख रहे कि कैसे अचीव कर सकते हैं। सो दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट एंड ड्रास्टिक चेंजेस दैट आई हैव सीन। और मुझे लगता है कि यही चेंजेस से हमें आगे बढ़ना है। अभी आगे बढ़ने से पहले जो मेरे सबसे इम्पोर्टेंट है ना कि ये ऐसे ही नहीं बनेगा, तो जो डिपार्टमेंट्स है, टीम लीडर्स है और टीम मेंबर्स है, देखो ये एज अ अमुआ टीम है, यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होती रहेगी, यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स के बाद में कॉम्पिटिशन चलती रहेगी, बट ये 1 तारीख है जहाँ पे हम सब एक है, यहाँ पे सारे कॉम्पिटिशन्स खत्म है, मंडे से चालू है, ठीक है, बट अभी के कंडीशंस में ये सब एक है, और यही हमारी अचीवमेंट है, और यही अचीवमेंट की वजह से हम लोग इस यहाँ पे पहुंचे हैं। सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। और बाकी किसी को भी मुझे लगता है कि टारगेट्स के रिगार्डिंग कुछ क्वेरीज है, जीतने के रिगार्डिंग कुछ क्वेरीज है, उसके लिए सही प्लान बनाओ। कोई भी टारगेट्स ये जो आप लोग ले रहे हो ना, यही टारगेट्स के ऊपर आप बाद में हंसोगे, जैसे अभी हम लोग हंसते कि नहीं हंसते? 1 लाख के लिए हंसते हैं, 1 लाख के लिए हंसते थे, 10 लाख के लिए होता था। ये वैष्णवी को पूछो, वैष्णवी तो देखी है सब कुछ, है ना। तो ये सारी चीज सब लोगों ने अपने उस जर्नी में देखी है। सो आई थिंक मेरी टीम को और सभी लोगों को जिन्होंने अवार्ड जीता है उनके लिए और भी खुश खबर है कि ये मंथ में और भी बड़े इंसेंटिव्स होंगे, और भी बड़ी अचीवमेंट्स होगी। सो ये मंथ ऐसे ही नहीं जाने वाला है।
ये मंथ और भी बेहतर कुछ लेकर आने वाले हैं। मेरे ख्याल से जो अभी हम लोग ने राइजिंग स्टार वाला रखा था, राइजिंग स्टार में मेरे ख्याल से शालू मैम को मिल गया है ना। कैसा फील हो रहा है शालू मैम? सोचा था कि आपने कि हाँ ये ऐसा कुछ है मिलेगा, क्या फील होता है? अच्छा फील हो रहा है सर। और ऐसा लगा नहीं था कि हो पाएगा, लेकिन टीम के सब मेरे से ही सब हुए। जी, और आपके लीडर अवंतिका मैम कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? उनका सपोर्ट बहुत अच्छा है, मतलब गाइड भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं मुझे। जो चीज़ मुझे कमी पड़ रही है वो चीज़ वो कमी पड़ने नहीं देंगे कि आप करो, शालू में आपके साथ हो, आप क्लाइंट हैंडल करते हो या फिर जो भी है पूरी तरह सपोर्ट करते हैं मुझे। तो यही मेरा कहना है कि ये मंथ में बिना कोई इसके अगर मतलब आपके मेहनत के तो है ही, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। आप अपनी टीम को सपोर्ट करो, आप अपनी पूरी जितनी भी टीम से उनको सपोर्ट करो। तो ये मंथ में हम लोग ये सारा जो अचीवमेंट्स है जो भी हम लोग ने लिया है 5 ईयर का, वो भी हम लोग अचीव कर सकते हैं। और इससे भी बड़े इवेंट्स में, मतलब ये जो अभी का इवेंट है इससे कई बड़ा इवेंट हम लोग कर सकते हैं। बट उसके लिए आगे टीम वर्क की जरूरत है। एक दिन कल का दिन आपको मिल रहा है, मेरी तरफ से छुट्टी आप लोगों को, लेकिन परसों से मुझे सब लोग है ना। तो परसों से हम लोग फिर से हम लोग अपनी टारगेट्स की ओर देखते हैं, अचीवमेंट को देखेंगे और उसको पाने की कोशिश करेंगे। जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स है प्रतीक्षा, पायल मैम, मानसी मैम आपको प्रोवाइड कर देंगे। बट अगेन जो भी इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स है उसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होगा। बट अभी जो 2 मंथ्स कंप्लीट हो गए, उन्होंने वापस ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ मेरा 2 मंथ्स हो गया, अभी मैं तीसरे महीने में भी यही सोचूंगी करके। तो वो थोड़ा सा ये करना होगा। बाकी तो सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, और चाहूँगा मैं कि आप अपने स्ट्रैटेजी के साथ में, अपने प्लान के साथ में वर्कआउट करें, एग्जीक्यूट करें और एग्जीक्यूशन पे ज़्यादा फोकस करो। जीतना है, पैसे कमाना है, यही अगले 6 महीने हैं आप लोगों के पास। ये 6 महीने में बहुत सारी चीज़ सीखनी पड़ेगी, बहुत सारा चीज़ करना पड़ेगा, लेकिन एक ही चीज़ समझाना चाहता हूँ, बिना एग्जीक्यूशंस के कोई जीत नहीं होती है, बिना डिसिप्लिन की कोई जीत नहीं होती है, और बिना फोकस का। तो इसीलिए जब भी आप वो 6th फ्लोर पे जाओ तो वहाँ पे वो जो विजन है, डिसिप्लिन, फोकस, एग्जीक्यूशंस, ये एक जो आपको दिखाया देता है इसका मीनिंग है, और वो सक्सेस का मीनिंग है। उसके बिना कोई इंसान सक्सेसफुल नहीं हुआ है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो डिसिप्लिन होना पड़ेगा। डिसिप्लिन का मतलब वेल ड्रेस नहीं होता है, डिसिप्लिन का मतलब ऐसा भी नहीं होता है कि 6 बजे मतलब 10 बजे आकर 6 बजे जाना डिसिप्लिन बोलेंगे। तो डिसिप्लिन का मतलब पहले इम्पोर्टेंट होता है कि पहले अपने आप को जानना, अपनी स्किल को अंडरस्टैंड करना। जब आप अपनी स्किल को अंडरस्टैंड करोगे तब आपको डिसिप्लिन में आना, और तब जब आप डिसिप्लिन में आकर जो भी आप, क्योंकि डिसिप्लिन में सबसे प्रॉब्लम जो होता है वो होता है फोकस का। किस चीज का? फोकस। क्योंकि हर दिन के लाइफ में हर दिन के अलग अलग ख्याल आते हैं, और वहीं पे इंसान सबसे मतलब जो जीत हारने की जो रीजन है वो होता है कि किसी के पास में डिसिप्लिन है लेकिन फोकस ही नहीं है। फोकस का मतलब ये होता है कि स्टेबल थिंकिंग, जो तुमने सोचा है वो तुम अचीव करोगे, और अचीव करोगे तो तुम्हें उस मंजिल को मिल जाएगा। इसके ऊपर रहने वाला जो ट्रस्ट है वो है फोकस। अगर ये फोकस डिसिप्लिन नहीं रखोगे तो अपने लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे।
डिसिप्लिन होना है, लेकिन डिसिप्लिन के पहले अपने आप को पहचानना भी जरूरी है। उसके बाद में फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से जितने भी मेरे लीडर्स हैं उनको मैं यही बोलूंगा कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो जब भी आप प्लान बनाओगे, जब भी आप ये सारी चीज करोगे, आपको डिसिप्लिन देखना पड़ेगा, फोकस देखना पड़ेगा। फोकस का मतलब होता है कि व्हाट यू हैव बिलीव, यू हैव टू बिलीव टिल द एंड। मैं अभी ये स्टोरी जो है वो हम सबकी है, बट क्या है कि इसको राइटिंग मतलब लिखने का काम जो है ना, वो मैं पहले से जनवरी में कर चुका हूँ, है ना। तो और ये जनवरी को मैंने बताया था कि हम लोग एक दिन 50 लाख का मार्क क्रॉस करेंगे करके, है ना। तो ये मेरे ख्याल से जितने भी मेरे टीम मेंबर्स है पुराने, उनको पता है ऐसी सारी चीजें। तो यही चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि मेरे मतलब जब मैं अपने आप को वर्कआउट करता हूँ तो ये चीज मेरे पास में फोकस होती है, नो मैटर व्हाट। बहुत सारे टीम मेंबर्स आते हैं, बहुत सारे कुछ चले भी जाते हैं और ये जर्नी चालू रहती है, लेकिन मेरी जर्नी कभी खत्म नहीं होती क्योंकि मेरा फोकस सेम ही होता है। मैं अगर जिस दिन आप लोगों को बताया है कि 50 ऑफिस करना है तो वो हम करके ही रहेंगे। तो इसीलिए रीजन क्या है, डिसिप्लिन एंड सेकंड फोकस। ये फोकस रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी अपने आप को नेगेटिवली नहीं सोचना है, कभी अपने बारे में नेगेटिव नहीं देखना है, कभी भी अपने बारे में कभी ऐसा नहीं सोचना है कि तू नहीं कर सकती, तेरे में कुछ है नहीं, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे में कुछ है नहीं, तेरे पास में सिचुएशन नहीं है, तेरे पास में डिग्री नहीं है, तेरे पास में ये नहीं है। ये जो नेगेटिविटीज है इसको पहले रिमूव करना है, क्योंकि जब भी सोचा तभी आपने सोचा नहीं, और जब सोचने के बाद में फिर आपका फोकस पूरा चेंज हो रहा है। तो ये चीज जो है फोकस की, ये हर एक के काम में आ जाएगी, हर एक के लाइफ के सक्सेस में। जब भी आप अपने जिंदगी में 1 लाख या 2 लाख के ऊपर जब है ना आपका मंथली ये इनकम होगा, आपको यही चीज दिखाई देगी उन लोगों में कि उन लोग डिसिप्लिन होंगे और फोकस होंगे। और थर्ड चीज जो है वो है एग्जीक्यूशन। मेन प्रॉब्लम आता है एग्जीक्यूशन से। डिसिप्लिन है, पता भी है, बट एग्जीक्यूशन फेलियर का डर। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है, फेलियर्स का डर होना। हम पहले से ही अगर जो साइंटिस्ट होते हैं हमारे, अगर उसने इलेक्ट्रिसिटी का या फिर कोई भी चीज का जब भी इन्वेंशन होता है, मतलब जो हम लोग रिवोल्यूशंस की बात करते, सारा चीज करते, वो एक अटेम्प्ट में नहीं होता है, एक अटेम्प्ट में कोई नहीं होता है, बट कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूशन। क्या कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूशन जब भी आप करोगे तब भी आप सक्सेस हो जाओगे। और इसीलिए जितने भी आज हम लोग मोबाइल फोन, जितने भी हम लोग ये करते, इसके पीछे साइंटिस्ट का जो वर्कआउट्स होता है, वो साइंटिस्ट हो, डेवलपर्स हो, या फिर जितने भी हमारे कोई भी अचीवमेंट्स है, बड़ी अचीवमेंट्स, इवन आप गोली भी खा रहे हो ना, ये भी एक साइंटिस्ट है। हम जो टैबलेट खाते हैं ना, कैसे होता है ना कि टैबलेट जाती है तो बराबर सरदर्द का तो सरदर्द में होता है, हाउ, क्योंकि इसके पीछे वो वापस एक साइंटिस्ट, मतलब हर एक चीज का एक रिसर्च होता है। मैं ये समझाने की बात कर रहा हूँ कि एग्जीक्यूशन जो है वो फेलियर का डर नहीं होना चाहिए। जिस दिन आप फेलियर का डर रखोगे, मेरे ख्याल से जो नई नई टीम्स हैं वो फेलियर से डरते हैं। उनके लोग नहीं लगता है कि यही एक मत है, ये मत में हार जाओगे तो पूरी दुनिया हार जाओगी, जरूरी नहीं है। अभी कुछ दिनों के बाद में मैं मेरे ख्याल से ये मानसी मैम है, रेशमा मैडम है, सारिका मैम है, आरती मैम है, मैं उनको मेरी जर्नी के बारे में बताऊंगा समझाने के लिए आप लोगों को कि मेरी जर्नी में उन लोग ने एक ही चीज नोटिस की है
कि मैंने कभी हार नहीं मानी है, और इसके पीछे मेरा एग्जीक्यूशन था, मेरा खुद अपने ऊपर बिलीव था, नो मैटर व्हाट, कि कैसे कैसे सिचुएशंस में कैसे कैसे इसमें रहे और किस तरह से हर एक जर्नी को, और अभी जो है वो यहाँ पे नेचर कोई चेंज नहीं हुआ है। हाँ हुआ है कुछ चेंजेस नहीं, सेम सेम बिलीव सिस्टम मेरे पास में इतना से 10 बाय 10 के वो ये था, गाला था, और उसमें भी सेम सपने थे, और आज भी सेम सपने हैं, और आज भी सेम सेम, और इसके पीछे एग्जीक्यूशन से, क्योंकि यही चीज इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको सक्सेस बनना है तो, अगर आप अपने लाइफ में सक्सेस बनना चाहते हो तो आप बाकी स्किल सीखोगे, सब कुछ सीखोगे, लेकिन ये जो चीजें मैं समझा रहा हूं आपको, जब आप इसको अपने लाइफ में अपने भीतर, शायद कोई डिजाइनर हो, कोई डेवलपर हो, कोई किसी को कोई भी चीज पसंद आती है उसमें हो, आप अपने आप को कभी कम मत समझना, कभी अनफोकस नहीं रहना, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि फेलियर से डरना। आप फेलियर से डरोगे, ये क्या बोलेगा, उन लोग क्या सोचा, कंपैरिजन करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो ये 5 CR भी बहुत अच्छी लेवल है। मैं यही जो मेरे टीम लीडर्स हैं उनको इस चीज के ऊपर फोकस करना चाहूंगा। जो नए टीम मेंबर्स आते हैं उनको थोड़ा सा गाइड करो, लेकिन गाइड करने के पहले आप लोग अपने आप में भीतर चेंजेस लेकर आओ, और जब आप अपने भीतर में वो चेंजेस लेकर आओगे तभी आपकी टीम और टीम मेंबर्स की जो जर्नी है इसको हम अचीव करेंगे। बाकी तो मैंने बोल दिया कि ये मंथ में जिस तरह से हम लोग ने अचीव किया है वही अचीवमेंट हम लोग नेक्स्ट मंथ में जब भी हम लोग ये मीटिंग करेंगे इससे भी ग्रैंड करेंगे और इससे भी बड़ा एक इवेंट रखेंगे। और पता नहीं कि अगर उस मंजिल तक रीच आउट होते हैं तो बहुत बड़ा सोचा है जो बिलीव नहीं कर पाओगे आप लोग, बट ये सारा चीज पॉसिबल होगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक ईच एंड एवरीवन। और मैं यही चाहूंगा आप लोगों को कि हर एक टीम मेंबर जो है वो 1 तारीख को अमुआ है, 1 के बाद में जो फिर आपके कॉम्पिटिशन्स लगाने हैं वो लगा दो क्योंकि हर एक चीज को मुझे कितना टाइम देना पड़ता है समझने के लिए, समझाने के लिए, ये अलग ही है। बाकी हर एक मतलब एवरी मंथ में मेरे ख्याल से हमारा वर्क एनिवर्सरी होता है, बर्थडेज होता है और ये सारा चीज होता है, तो वो भी हम लोग ने सोचा है कि वो मंथ एंड में ये जो मीटिंग है इस तरह से जो इवेंट्स रखेंगे उसमें हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। अभी जो ये मंथ में हमारे अचीवमेंट हुए हैं जिनकी अवंतिका है ना, जिन्होंने 1 साल कंप्लीट किया, तो हम लोग उनको थोड़ा सा है ना क्लैप करेंगे कि उन्होंने 1 साल की अपनी जर्नी से फिर उसके बाद में पहले मैं अवंतिका के ऊपर पे समझाऊंगा कि जब फर्स्ट डे आए थे तो इंटरव्यू में जो उन्होंने बताया कि मेटा के बारे में मैंने पूछा था, लेकिन मुझे पता था कि ये जो सीधी सादी लगने वाली जो है इसमें बहुत क्षमता है। और उसी दिन से मैंने उनको बोला भी था कि यू हैव ग्रेट पावर्स, और कल भी परसों भी आए थे तो तभी मैंने उनको समझाया है कि ये सारी चीजें जो आप जो भी जीतोगे वो सिर्फ आपके बदौलत ही जीतोगे। आप अपने आप को सिर्फ टोको मत। और यही चीज मैंने बताई थी कि बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं खुद के अंदर, लेकिन हम अपने ऊपर सेल्फ बिलीव नहीं रखते, डाउट करते, हमेशा डाउट करते रहते। और इतने सारे डाउट्स क्या बताओ कि मतलब दूसरा भी नहीं करता होगा लेकिन इनको डाउट है सारे अपने ऊपर। तो यही चीज मैंने उनको देखी, लेकिन 1 साल की जो जर्नी में
जो अचीवमेंट किया वो काबिल तारीफ है। उसके बाद में मेरे ख्याल से रेणुका मैम का भी अगले अगले महीने में, बट उस टाइम पे मैं उनके 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 इसमें कर दूंगा। बट अवंतिका मैम का अगर मैं देखूंगा जर्नी, क्या शानदार जर्नी है। मतलब उसने एक भी पल ऐसा मुझे महसूस नहीं करवाया कि हाँ जो भी वो आ रहा था वो कर रही थी, और डिसिप्लिन के साथ में बहुत ही मन लगा के साथ में करती थी। और उसी का उनको अचीवमेंट और उसी का उनका जो वर्क एक्सपीरियंस है, वर्क जर्नी है, और भी हम आगे बढ़ेंगे और भी हम आगे ग्रो करेंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू। उसके बाद में आते वर्क एनिवर्सरी है ना, आरती मैम जिन्होंने मेरे ख्याल से मुझे बताया भी था कि मेरी लेकिन ठीक है, तो उन्होंने मेरे ख्याल से 2 साल कंप्लीट कर दिए, और कोई यकीन भी नहीं मानेगा कि उनको 2 साल हुए, है ना। तो इस तरह की जो जर्नी है, और इसके लिए मैंने एक ही चीज बताऊंगा कि अगर एप्रिसिएशन या फिर ये जी सारी चीजें हैं, यहाँ पे एक चीज समझो कि उसमें उनका खुद का भी एक योगदान है, क्योंकि वो शायद जो मैं बात करता हूँ उसके ऊपर बिलीव रखते हैं और कोशिश करते हैं कि हाँ सर ने बोला है तो करेंगे। तो ये जो बिलीफ सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। क्या होता है ना कि हाँ ठीक है बोल दिया, उसमें क्या है, ऐसा भी होता है। तो ऐसे केसेस में अगर आरती मैडम को देखेंगे तो वो चाहते हैं, है ना, जैसे कि अभी मुझे ऑब्जर्व करेंगे, फिर मैं जब जाता हूँ तब फिर मेरे जैसा ही वो प्रिटेंड करते हैं कि मैं इनके साथ में भी यही करूँ। तो यही उन्होंने मेरे ख्याल से अपने टीम के साथ में किया। दीपाली मैम है, ग्लोरी मैम है, तन्वी मैम है, इनकी जो स्टोरी थी, प्रांजल मैम है, मतलब इवन सारे लोगों की जो स्टोरीज थी, उस स्टोरीज में यही दिखाई दिया कि मतलब उनकी एक अलग जर्नी जो है वो ये कर रहे। तो मेरे ख्याल से उनके लिए भी है, तो उनके लिए भी क्लैप होना चाहिए कि उनकी सेकंड एनिवर्सरी हो गई तो उसके लिए दिवाली। फिर उसके बाद में हमने एमपिलर का ऑफिस जो है वो लिया था। मतलब पहले तो सपोर्ट टीम था क्योंकि वो मैडम थी नहीं यहाँ पे, नहीं तो लिया तो मैंने वहां पे उसी के लिए लिया था। बट फिर यही चीजें हैं कि जहाँ पे हम लोग ने ये मंथ में मतलब लास्ट मंथ में जो अचीवमेंट किया है ना, तो वापस अभी हम लोग मेरे ख्याल से अगले मंथ में नया ऑफिस एमपिलर का ले रहे। बट कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर, मतलब अगर पिछले मंथ का है, पिछले साल का है, उसके लिए हम लोग क्लैप करेंगे। फिर उसके बाद आती है वाडेकर, क्या बताऊं। तो ये डिजाइन स्टूडियो की स्टोरी तो क्या ही बताऊं मैं, मतलब है बहुत, वो होते हैं ना कि होता है नटखट होता है, सब कुछ होता है, वैसा वाला चीज है। तो फिर भी कैसे भी करके उन्होंने अपने बिजनेस में अपने आप को समझकर उन्होंने अपने डिजाइन स्टूडियो को, टीम को उन्होंने प्रायोरिटी रखा, और उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे मेरी टीम को एक अच्छा स्पेस और अच्छे थोड़े से एक प्राइवेट स्पेस में जाना है, और प्राइवेट स्पेस में जाना है तो फिर मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं है। तो ऐसे टाइम पे उन्होंने अपने टीम का सोचकर नेरुल में उन्होंने अपने ऑफिस की वापस ओपनिंग कर दी, डिजाइन स्टूडियो की स्पेशली, और वहां पे वो अपने आप को प्रूव कर लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है ना कि इतने कम टाइम में, मतलब आप अगर स्टोरी देखोगे तो हर एक की इतनी कम उम्र में है कि जहाँ पे मेच्योरिटी या फिर ऐसी चीजें होती है वो अभी तक नहीं, बट धीरे धीरे उनको जो बिजनेस समझ में आ रहा है और जो क्लाइंट के एप्रिसिएशन मिल रहे हैं, जो क्लाइंट के काम कर रहे हैं, कृष्णा ज्वेलर्स हो और बाकी ज्वेलर्स हैं, गोल्ड के ज्वेलर्स हो या फिर बाकी लोगों के है, तो वहां से जो रिव्यूज है क्लाइंट के वो बहुत अमेजिंग है। एंड इट्स बिकॉज ऑफ द टीम
एंड व्हाट विजन, वो जिस तरह से वो अपने आप को चेंजेस करके ये सब कुछ करवाती है, सो आई थिंक क्लैप उसके लिए भी होना चाहिए कि जो उन्होंने ऑफिस लिया और अपने आप को इंडिविजुअली प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसके रिगार्डिंग हम लोग ने केक भी रखा है जो लास्ट मंथ में हुए उसके रिगार्डिंग, तो वी विल सेलिब्रेट दिस। ठीक है, बट मोस्ट जो मैंने आज के दिन में जो मुझे समझाना है वो एक ही चीज़ है, टारगेट अचीव हो सकता है, बट 3 चीज़ें जो मैंने बताई है वो अपने लाइफ के सक्सेस के लिए काम आएगी। जो घर वाले बच्चों लोगों को हमेशा बताते हैं ना कि सक्सेसफुल बनना है, सक्सेसफुल बनना है ना, तो सक्सेसफुल बनने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये 3 चीज़ें होती है। पैसा इंसान कमा सकता है, पैसे से इंसान कोई सक्सेसफुल नहीं होता है। आज सचिन तेंदुलकर देखा जाए तो वो पैसे से सक्सेसफुल नहीं है, विराट कोहली पैसे से नहीं है, ना मेसी है, ना रोनाल्डो है, ना इतने सारे तमाम प्लेयर्स है, या फिर कोई साइंटिस्ट हो सकता है, या फिर अलग अलग तमाम अपने अपने फील्ड में हो सकते हैं। तो ये सक्सेसफुल होने के पीछे सिर्फ पैसा नहीं है। अगर आप हम लोग देखेंगे सैम आल्टमैन है ना, मार्क ज़करबर्ग है, ये क्या पैसे से सक्सेसफुल है क्या? नहीं, तो अपनी आइडिया से है, अपनी स्किल से है, अपनी आपकी चाहत से है ना, और तब जाके ये जब अचीवमेंट होता है तब जाके, बट उसके पहले की जो उसकी जो स्टोरी होगी उसमें हमेशा आप हर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो या फिर किसी का भी हो तो सबसे इम्पोर्टेंट एक ही चीज बोलेंगे कि आपको डिसिप्लिन होना है, आपको फोकस होना है और आपको एग्जीक्यूट करना है, फेलियर से डरना नहीं है। इस हर एक बताएगा, उसके पीछे का रीजन ही यही होता है। आपको सिर्फ सक्सेसफुल इंसान दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे की जो जर्नी है वही जर्नी आप लोगों को बता रहा हूँ। ये टारगेट लेते समय आप उसी तरह से सोचो, उसी तरह से एग्जीक्यूट करो, आपका ये टारगेट और ये सारा चीज अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो यही मुझे आप लोगों को बताना था। बाकी थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मैनेजमेंट, थैंक यू ऑल ऑफ माय डिपार्टमेंट हेड्स, टीम लीडर्स, मेरे राइजिंग स्टार्स, मेरे सारे चीज सब मेरे हो, और इसीलिए आप लोगों के ऊपर मुझे प्राउड फील है और मुझे लगता है कि आप लोग हर एक मंजिल को पा सकते हो। एंड थैंक यू एवरीवन। Thank you so much, sir, for your valuable words. Now, to appreciate everyone who participated and made this meeting engaging, we have participation certificate for RTLA, Arshada, Gaura, Neha, Kripa, Snehal, Zahid, and Shilija. Please come on the stage. Arshada. Gaura, sir. Neha Lal. Kripa. Snehal. Zahid. Kshitija. Group photo. Good evening everyone. Sorry for fumble. Actually पहली बार कर रहा हूँ, so I don't have that much experience, but let's go.
सो आई वांट के पहले ना आप सब लोग अपने चेयर पे या सीट पे जहाँ पे हो वहाँ से खड़े हो जाओ एंड हमारी जो अमोआ कॉर्पोरेशन की टीम है और पर्सन वी हैव हियर अमोल सर, उनका जो विजन है जिस चीज़ को लेके, पूरी कंपनी को लेके, सारी चीज़ों को लेके, राइट, तो मैं चाहता हूँ कि आप क्लैप करो एक बार जोर से। एक हमने टीम की है, राइट, किसी सिंगल पर्सन को बोला, बट हाँ जो रूट है ना, जो एक पेड़ का जो एक रूट रहता है, जो जहाँ से बीज उगता है, तो वो अमोल सर है। And we all have to appreciate our team leaders, team heads, everybody, every single person. Thank you everybody, and let's take a moment, right, जहाँ पे हम देखें एक स्टेप और ऊपर होके कि हमें नेक्स्ट अगले महीने या फिर अगले 6 मंथ्स या अगले 1 साल में हमें क्या अचीव करना है। एंड थैंक यू सो मच ऑल। दिस इज द थिंग दैट वी अचीव दिस मंथ एंड आई वांट कि हम अगले महीने और अच्छे टारगेट पूरा करें। Thank you.